Yes, please. Yes, so good afternoon, everyone. We have our guests, both the guests, and we are very happy to have the co founders of Cooking Mania with Top Chefs. It was a much awaited session as we discussed now. एंड आई एम होपिंग कि बहुत सबको बहुत बहुत पसंद आए एंड लेट मी इंट्रोड्यूस बोथ ऑफ देम. So Sonal Choraria is also our member in Cafe Group. Many of you must be knowing her also. She's an entrepreneur and she is the owner of Cooking Mania with Top Chefs. She, along with three other partners, they formed this huge group, which is now a huge group. They had started 3 years ago. And Sonal is also an innovator, food stylist, and consultant. She's also a food blogger. She's a professional taster, and she's also the lifestyle and health guide on home remedies. She also teaches Jainism to kids. So, whole in whole, a multi-talented women. हाँ, सोनल जी का टैलेंट कम ही नहीं होता है. कम नहीं होता बोल है. कम 2 घंटे लग जाएंगे उनके टैलेंट का उनके अगर आप बरा बोलते रहो. नहीं, बस बस और नहीं बोलूंगी बिकॉज बाकी अब आप लोग बोलेंगे. सो वी नहीं, मेरे बारे में have बताइए हाँ कुछ. yes, so we have Rajesh ji also. So Rajesh ji is the proprietor of a business concern. So उनका मेन काम वो है. He deals in electronics and he is the co-founder of Cooking Mania with Top Chefs. सोनल जी की वॉइस में बोलूं तो सारा कुछ वही करते हैं. And he's an avid food critic and consultant, and he organizes lots of events at Cooking Mania with Top Chefs, जिसको CMTC के नाम से it's a short form. So let's begin the journey with the wonderful co-founders. Welcome, Hello. Sonal ji. Good and afternoon, Rajesh ji. cafeterians. Good afternoon, cafeterians. Thank Uh, you. Good afternoon, everyone. Lovely members over here. आपने See, कविता जी के मुंह से सुन लिया सब कुछ हमारे बारे में. सोनल जी, आप कुछ बताइए अपने CMTC के बारे में. सबसे पहले तो thanks a lot, Kavita, for this wonderful session. We were really waiting for this because Yes. इतना hitch and glitch हुआ है कि finally today we have Absolutely. landed on Cafe platform. So let me say a few words about Cafe first. Kavita is a wonderful person. She really is selflessly doing something for us Thank all. you. Thank you. And the same category in which we are there in Cooking Mania. Yes. Rightfully said, we are cooking maniacs, to be very apt, because we are crazy for food, not only in eating, but in developing it. And also, we are more concerned about developing the home chefs. So, Cooking Mania was generally conceptualized over a cup of coffee, very apt place to form a group Yes. related to food. So Rajesh and me were sitting in a cafe along with Chandra Kamdarji, who is the soul of this Mania family. We were just sitting over a cup of coffee. We thought, why not start a group when we are all so much interested and we are in this foodie world, always trying new recipes, always bringing out the best in other people, helping out others. So we just thought about this, and so the journey started. It initially started only with us five members, not more than that. Then we thought how to just develop it more further. We formed it on the Facebook, and to be very frank, from day one, it was like a family. We came from different fields, but we were bonded so well. We knew each other beforehand, but we bonded over this food platform so well that now it is a family. And we call it the CMTC family. Not even a single member is left out. Not even a new person is not welcome or anything, whether he is from any part of the world. He is most welcome to join us. And I would initiate this program for you also to join it so that we can share our knowledge on food and develop one another with each other's welfare. The point of Cooking Mania to be formed was to develop the home chefs to build a career around themselves. Those people who are from their humble kitchen could not go forward. We brought them out of their shell and gave them a platform to develop their skills more aptly.
So it started with Chandra Kamdar ji, who is a wonderful, wonderful traditional food innovator. Like, Sonal, sorry to interrupt you. Should I play the yeah, presentation you can. alongside? Yeah, you can. Okay. So people will be able to connect more. Yeah, actually. to connect them. Yeah, very true. Is it visible? Yeah, it's visible to me. See about others. Not visible to me. Not visible. No, visible. I Visible, think no? he's through mobile, so actually, Now Okay. it's visible. yeah. Okay. This is Mr. Rajesh Shah. Just hold on the screen for the time being when I Sorry. tell the Yes, name. yes. Actually, Yeah. whenever I'm moving the mouse, it's already Yeah. automatically. Okay, let it. Yeah, let it be with Mr. So Chandra I'll Kamdar use ji. like this. Yeah, that will be better. Hmm. Yeah. So that's me. You all know me. Kavita has said a lot about me. No need to say more. Next comes Mr. Rajesh Shah. Yeah. I would like to say that he is the heart, mind, body, soul of CMTC. We are nothing without him. Without him, we hardly take a step forward. So to be very aptly told, Rajesh Shah is the main pillar of CMTC. Without him, we generally do not work anything. Unless or until राजेश इज देयर वी आर लाइक ओह क्या हुआ राजेश कहाँ है ये हम लोगों का हाल होता है तो आप समझ जाइए कि राजेश शाह कितना इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए Absolutely. एंड तो मेरा एंड राजेश का बॉन्डिंग ऐसा है कि एक भाई बहन कैसे लड़ते हैं ना जैसे ये मेरा वो मेरा ये तेरा ये मेरा और दैट वो सारा दिन हम दोनों का चलता रहता है और हमको हमारे ऊपर अंश रखने वाली चंद्रा कामदार जी हैं उनका कविता उनका स्लाइड हाँ Yeah. ये हम इनको माँ का दर्जा दिए हैं हमारे ग्रुप में क्योंकि सिंस आई टोल्ड यू कविता इट इज अ सीएमटीसी फैमिली Yes. सो हमारे यहाँ पर इनको हमने माँ का दर्जा दिया है क्योंकि शी इज अ वेरी केयरिंग नेचर पर्सन एंड शी इज लाइक शी नोज एवरीथिंग अंडर द सन शी इज डन मेनी थिंग्स एंड बहुत कम वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ तो होल एंड सोल ऑफ सीएमटीसी फैमिली so she is one person whom we look upon as a mother figure not only me not only Rajesh Shah हम लोगों की तो माँ है ही है वो पर सारे फैमिली मेंबर्स सीएमटीसी के इनको एकदम बहुत मानते हैं एंड नेक्स्ट कम्स ज्योति चोपड़ा जी ज्योति चोपड़ा जी हमारी एक मेंबर है वेरी 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 मच लाइक एप्ट पर्सन फॉर दिस फूड जर्नी बिकॉज उनके बिना हमारा कोई भी काम प्रॉपरली होता नहीं है she is like a workaholic for CMTC family. ज्योति जी के बारे में बोलने ज्योति जी के बारे में बोलने के लिए थोड़ा हिस्ट्री में पीछे जाना होगा एक्चुअली सोनल ने आपको बताया कि हम 3 लोग जब बैठे हुए थे तो हमने डिसाइड किया सीएमटीसी फॉर्म करने के लिए तो दैट वाज इन मई 2016 तो हमारा प्रेजेंस जो है वो वेस्टर्न इंडिया में था हमारा प्रेजेंस जो है वो ईस्टर्न इंडिया में हम लोग कलकत्ता में है ही हमारा प्रेजेंस जो है वो साउथ इंडिया में था हमारा प्रेजेंस ओवरसीज था लेकिन नॉर्थ इंडिया में हमारा कोई प्रेजेंस नहीं था तो ज्योति जी का इनका ये जो है नॉर्थ इंडिया में लोग बहुत स्ट्रांग है ज्योति जी इज वेरी वेरी पॉपुलर इन नॉर्थ इंडिया तो इनका एक ग्रुप था जिसका नाम था टॉप शेफ सॉरी कुकिंग मेनिया तो नवंबर 2016 में हमने इनके संग मर्ज किया और फिर जो है कुकिंग मेनिया विद टॉप शेफ बना तो ज्योति जी और हमारा जो भी टाई अप्स होता है जितने भी स्पॉन्सर्स के संग जो भी टाई अप्स होता है मीडिया के संग हमारा जो भी जैसे मेरी सहेली हुआ या ग्रस होपा में जो भी हमारी रेसिपी जो भी हमारी मतलब पब्लिश होती है वो सब ज्योति जी के थ्रू होती है मतलब इतनी अच्छी तरह से ये जो है वो मीडिएट करते हैं लोगों से कि हम लोग सामने वाला कभी भी मना नहीं कर सकता और मेरी सहेली वगैरह जो है इसमें अगर आप पब्लिश कराने जाए एक ऐड तो 80,000 से 90,000 रुपया लगता है लेकिन सीएमटीसी जो है वो फ्री में कराती है और कम से कम 100 मतलब 100 के अबाव होम सर्व्स की रेसिपी हमने मेरी सहेली जो कि जिसकी जो है वो मतलब एडिटर आप जानते हैं हेमा मालिनी जी है उसके अंदर में हमने 100 के ऊपर रेसिपीज हमने पब्लिश कराई है फ्री ऑफ कॉस्ट सोनल जी आगे हाँ जी तो ये जो नॉट ओनली फॉर मेरी सहेली या ग्रह शोभा
ज्योति जी ने काफी डेलीज न्यूज़पेपर्स, इनसे भी हमारा कनेक्शन बहुत अच्छे से तालमेल बिठाया है, जिसमें हमारे पर वीकली मेंबर्स की रेसिपीज छपती थी, तो Okay. जिसके कारण हम लोगों को काफी पॉपुलैरिटी भी मिली, एंड ऑल थैंक्स टू ज्योति, शी हैज डन एन कमेंडेबल जॉब ओवर देयर, एंड Absolutely. दैट्स व्हाई वी फोर आर सो बॉन्डेड। आई वुड से सीएमटीसी का हार्ट, माइंड, बॉडी, सोल हम चार हैं, समझ लीजिए, लेकिन इस हम चारों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हम चारों मिलजुल, हम चारों की बॉन्डिंग इस तरीके की है कि आज एक को पता है तो द वर्क इज डन। हम लोग ऐसे नहीं क्रिप करते हैं कि हाँ मुझे नहीं बताया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये सब हम लोगों के बीच में नहीं है। वी आर जस्ट फोकस्ड ऑन डूइंग द वर्क। Absolutely. जैसे भी हो काम होना चाहिए, हमारे कोई भी मेंबर्स को किसी भी चीज से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। Absolutely. Wow. These are some of my dishes which I have put up So in the for PPT. Sonal as a food stylist, basically. So हाँ, वो basically आप जानते हैं 2-3 शेफ्स का मैं नाम बोलूंगा, हाँ, जैसे महर्षि जी हैं, आप जानते हैं उनको? महर्षि, जी, गौतम महर्षि। गौतम महर्षि नाम तो सुना है मैंने, जानती नहीं जी हूँ। जी, बहुत पॉपुलर है वो। और उसके बाद इनका कपूर जी को तो सब जानते ही होंगे। संजीव कपूर। एक्चुअली मैं सबको इनके सरनेम से बुलाता हूँ, तो सॉरी। हाँ जी, तो क्या है कि ये सब जो है, ये जितने भी आप डिशेस देख रहे हैं सोनल की ना, हाँ, ये हाँ, सब जो है आपको ताज्जुब होगा जान के कि बहुत सारी जो है उनकी डिशेस की स्टाइलिंग भी सोनल ने की है, जो कि हमारा एक मोटो है कि हम लोग कभी भी अपने आप को प्रमोट नहीं करेंगे, इसलिए हमारा नाम नहीं आता है। सोनल आगे। राजेश जी ने जो कहा वो ठीक है, मैं इतनी भी ज्यादा नहीं करती हूँ, बट आई हैव लर्नड अ लॉट आफ्टर फॉर्मिंग दिस ग्रुप ऑल्सो, क्योंकि हमारे मेंबर्स इतने वर्सेटाइल हैं, इतने ज्यादा वर्सेटाइल है, वी हैव केप्ट ऑन डेवलपिंग इट। लाइक इसमें ये हुआ कि एक को आता है तो हम सबको आता है, ऐसा हम लोगों ने माहौल क्रिएट किया है यहाँ पर। हम लोग एक दूसरे से अपनी रेसिपी शेयर करते हैं, हर चीज में एक दूसरे की सलाह मशवरा करते हैं, लेते हैं। हमारे कुछ कुछ बहुत एमिनेंट मेंबर्स भी हैं, जैसे जिनको अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे ये वर्ल्ड क्लास हैं एकदम। एक दो का नाम भी अगर मैं लूंगी, जैसे बीना गुप्ता आंटी है, जिनको हम मासी बोलते हैं। सिंस आई टोल्ड यू हमारी ये फैमिली है, हमारे सब कोई कुछ ना कुछ लगते हैं, समझ लीजिए। वो हमने रिश्ता अपना इस मेनियाक फैमिली में बनाया है। वेरी नाइस। सही मायने में हम लोग इतना ग्रो कर रहे हैं इसी वजह से। आज हम लोगों को क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। वी आर वेरी सेटिस्फाइड विद आवर लिमिटेड नंबर्स। वी आर नॉट रनिंग आफ्टर द नंबर्स। वी ओनली वांट द क्वालिटी ऑफ द पीपल टू बी डेवलप्ड ऑन दिस प्लेटफॉर्म, जिसके लिए आई विल से राजेश शाह, he is a wonderful person. When you connect with us, you will understand how wonderfully he plays the role of being a developer, of being an influencer. We hope कैफे से कई लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिले के साथ काम करने का। हाँ जी, जरूर, क्यों नहीं। एंड जस्ट नॉट वर्ड्स, आप देखोगे जब आप ज्वाइन करोगे तब आपको लगेगा कि राजेश शाह कितना टाइम देते हैं, हर एक मेंबर की वेलबींग के बारे में इनको पता रहता है। आज हम लोगों को नहीं पता रहता है, हम लोग राजेश भाई से पूछते हैं, भैया उनका पता है, हाँ इनका पता है। इस तरीके का हम लोगों का तालमेल है। आज चंद्रा कामदार जी को ले लीजिए, या ज्योति चोपड़ा जी को ले लीजिए, या मुझे ले लीजिए, या राजेश शाह को, एक को पता है तो हम सबको पता है। कुछ कुछ मेंबर्स हमारे इतने अच्छे फ्रेंड्स हो गए, होटेलियर्स, रेस्टोरेंट ओनर्स, कि हम लोगों को कभी लगता ही नहीं कि वो हमारी फैमिली के मेंबर्स नहीं है। हम लोग बिंदास उनके पास जाते हैं, उनके मेनू में कोई प्रॉब्लम होती है हम लोग तुरंत करेक्शन करवाते हैं, हम लोग हर तरफ से गाइडेंस उनको देते हैं, एंड वी आर ऑल अ हैप्पी लॉट ऑफ पीपल। दैट इज द बेसिक। सामने आपका जो स्लाइड अभी है, इसमें कुछ सीएमटीसी की इवेंट्स है। जो पहला जो आप फर्स्ट जो आप पिक्चर देख रहे हैं, लास्ट ईयर का वाला 2019 वाला वो अवार्ड शो है, वेजिटेरियन अवार्ड शो है, जो कि ऑल ओवर इंडिया किसी भी फेसबुक ग्रुप ने आज तक नहीं किया। हमने 63 रेस्टोरेंट ओनर्स, होटेलियर्स, होम शेफ्स और स्ट्रीट वेंडर्स को हमने अवार्ड्स दिया था। ये डे ऑल्टर में हुआ था। और उसके बाद आप देख रहे हैं सुहाना जो कि प्रवीण मसाला है, सुहाना एक बहुत बड़ा ब्रांड है। वो हमारे कोलैबोरेटर्स थे एक इवेंट के लिए। उसके बाद आप देख रहे हैं अल्पेन लेबी, ये जो है ये लोग बहुत ही मतलब अच्छा कॉन्टेस्ट कराते हैं। ये जो कॉन्टेस्ट इन्होंने इवेंट कराया था, इसमें
10,000 के प्राइस थे पर मेंबर। जो विनर्स थे 3 विनर्स को 10,000 के प्राइस मिले थे। वाओ। जी सोनल। एक बात मैं ये बोलना चाहती हूँ, हम लोगों ने जब भी किसी का प्रमोशन किया है या जब भी किसी से हमारा कोलैबोरेशन हुआ है, जो भी हम लोगों को देना चाहते थे हम लोगों ने मना कर दिया, बिकॉज वी वांटेड आवर मेंबर्स टू बेनिफिट आउट ऑफ इट। यस। तो हम लोगों ने जो भी प्राइज मनी हम लोगों ने उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ताकि सबको एक एक हिस्सा मिले और सबको एक प्रमोशन का प्लेटफॉर्म मिले। तो यही हमारा मेन मकसद था। अब जैसे अवार्ड शो के बारे में राजेश शाह जी ने बताया अभी, अवार्ड शो हमारा मेन मोटो यही था कि ये जो स्ट्रीट साइड वेंडर्स है, ये जो लोकल होम शेफ्स है, इन लोगों को कैसे पॉपुलैरिटी दिलाई जाए, यही हमारा ब्रेन वेव था इसके पीछे। अब राजेश शाह बताएंगे इसके बारे में हमने कैसे इसमें अभी की जो स्लाइड है इसमें आप देखो, जो फर्स्ट फोटोग्राफ्स है वो हमारा एक और ब्रांच है, इसको हम लोग बोलते हैं CMTC स्पर्स। उसमें क्या है कि बहुत बार क्या है कि नहीं चाहते हुए भी फंड हम लोग को लेना पड़ता है, क्योंकि बहुत कंपनीज बोलती है कि नहीं भाई हमको फंड ही देना है, हम पैसे ही देंगे। तो वो रुपए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को चैरिटी के लिए यूज करते हैं। एक स्पर्स हम लोग एक फाउंड किए हैं चैरिटी के लिए। और ये जो है पार्क स्ट्रीट में एक रेस्टोरेंट है हकुना मटाटा, उसमें हमने ये जो इस रेस्टोरेंट में हमने ये इवेंट किया था, ये हमने एक बच्चों की एक स्कूल है राजारहाट में, उन बच्चों को हमने वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेशन किया था। लंच लिया था इन लोगों के साथ में रेस्टोरेंट में। Nice. उसमें जो सेकंड फोटोग्राफ है वो मेरी सहेली का है, जिसमें सोनल का जो है सोनल की एक रेसिपी छपी थी साथ में। उसके नीचे जो आप देख रहे हैं वो अल्पना सिंह है, वो दिल्ली की मेंबर है हमारी। हाँ, इनकी एक रेसिपी बुक भी छपी हुई है। हम लोग यहाँ पे क्या है कि ईस्ट में नहीं जानते इनके बारे में, लेकिन ये बहुत ही पॉपुलर होम शेफ है नॉर्थ की। और जो थर्ड आप स्लाइड देख रहे हैं ये मुंबई की है। ये अर्थवेदा बोल के एक रेस्टोरेंट है मुंबई में, जिनका एक बहुत ही यूनिक फूड है। ये प्री कोविड है, मतलब कोविड के पहले का इन्होंने हमें बुलाया था अपना फूड टेस्टिंग के लिए, और ये हमारे मुंबई के मेंबर्स हैं उसके साथ में। ओके ओके जी आगे बढ़ते हैं। ये राजेश मैं बोलूं? हाँ जी। तो ये था गौतम महर्षि के साथ हमारा टॉक शो, जिसमें उन्होंने अ वेरी हम्बल सोल, हमेशा हम लोगों को प्रेरित किया इन्होंने कि कैसे CMTC को आगे बढ़ाया जाए। और ये एक और हमारी पुणे की बहुत वर्सेटाइल मेंबर है। शी इज लाइक पर्सनालिटी डेवलपर। ये फॉर्मर मिस इंडिया रह चुकी है ये मीनाक्षी आहूजा। या तो इनका हमारे साथ बहुत अच्छा टाइप है। टाइप नहीं बोलूंगी, बहुत अच्छा बॉन्डिंग है। हमारी फैमिली मेंबर की तरह ये भी। तो ये पुणे में रहती है। और एक और यहाँ पर मैं इनवाइटेड थी फॉर मिलेट, फॉर अ मिलेट ऑर्गेनाइजेशन जो डेवलप कर रहे हैं टेफ को। तो आई वाज अमंग द 20 पीपल हु वाज इनवाइटेड इन दिस पैनल ऑल ओवर इंडिया to develop this grain. This is Mr. Rakesh Shetty with whom I'm talking over here. He is also a popular celebrity chef. Yes. हाँ जी। और काफी ऐसे सेलिब्रिटी शेफ्स हमारे हैट के अंदर हैं। जैसे ये हमारा अवार्ड शो का है, जिसमें राजेश आप बताइए प्लीज। जी ये भाटिया जी है। ये एक पॉपुलर बॉलीवुड एक्टर है। ये हमारे शो के मतलब हमारे अवार्ड शो के होस्ट थे। उसके बाद ये जो है कंकावती जी है। ये सरवनी दत्ता जो हाल ही में लास्ट मंथ जो गुजर गई, वो हमारी चीफ गेस्ट थी। उनकी ये जो है वो नीस है, तो ये भी हमारी चीफ गेस्ट थी। और पास में जो है वो रेस्टोरेंट ओनर्स है, आप डोमा वैंग को जानते हैं, पॉपुलर जो है वो मोमो क्वीन बोली जाती है कलकत्ता की। और शी इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन। अगर आप उनके लाइफ के बारे में पढ़ेंगे या जानेंगे तो कोई भी होम शेफ जो है वो मोटिवेट हो जाएगा। मतलब वो पहले टैंगड़ा में इनकी एक छोटी सी डाला वो था, और उससे उन्होंने अभी 3 रेस्टोरेंट कर लिया अपनी डोमा वैंग। उसके पास में जो है वो प्रियंका एम है, प्रियंका मल्लिक जी है, वो मास्टर शेफ 6th सीजन की जो है वो टॉप 10 रही थी। उसके पास में अभिलाषा चांडक जी है, वो भी मास्टर शेफ 10 में थी, जिसमें कीर्ति भौतिकिया जो कि कलकत्ता की है वो विनर हुई थी। और अभिलाषा चांडक जी वो टॉप 10 में आई थी। तो इस तरीके से हमारे कुछ इवेंट्स हैं जो मैं आपको बताई हूँ अभी।
तो बेसिकली हमारा मोटो है इस फूड ग्रुप को फॉर्म करने का कि होम शेफ्स को कैसे हम लोग डेवलपमेंट की तरह रास्ते पे लेके जाएं। तो उनको कभी कभी ऐसा होता है, वी आर ऑल वंडरफुल शेफ्स इन अ किचन, अपने परिवार वाले तो सब बोलते ही हैं कि हाँ जी तुमने बहुत अच्छा बनाया है, पर क्या ये वर्ल्ड क्लास हो सकता है, ये हमारा डाउट रहता है हर समय। क्या ये मैं लोगों के सामने पेश कर सकती हूँ, ये हर एक हाउसवाइफ के मन में आता होगा। तो इसीलिए उस चीज को उनके अंदर से निकालने का जिम्मा हम लोगों ने लिया इस प्लेटफॉर्म के जरिए। हमने सारे होम शेफ्स को एक प्लेटफॉर्म दिया कि चलिए यहाँ पर आइए, यहाँ पर शोकेस कीजिए, इस प्लेटफॉर्म से आपको पॉपुलैरिटी मिलेगी, देन डेवलप योरसेल्फ, work towards. So many have developed so well, they have started their own cloud kitchen from their homes itself. So आज मैं इसी नजरिए को आगे बढ़ाते हुए ये बोलूंगी कि हम लोग ये जो ग्रुप में आज इनवाइटेड हुए हैं टू हेल्प पीपल हाउ टू डेवलप देयर बिजनेस मॉड्यूल एंड टू मेक अ मार्क इन टुडेज वर्ल्ड। तो इसके लिए क्लाउड किचन का सेटअप या कोई भी होम किचन का सेटअप या फिर कोई रेस्टोरेंट ओनर का रेस्टोरेंट का सेटअप, ऑल दीज वी विल बी एक्सप्लेनिंग यू ऑल इन दिस स्मॉल शॉर्ट कॉन्वर्सेशन। तो राजेश शाह जी, आई थिंक सो वी विल स्टार्ट विद द बेसिक। हाँ जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कैफे में होम शेफ्स कितने हैं, मतलब जो प्रोफेशनली करते हैं, कि कविता जी प्रोफेशनली जो करते हैं? राजेश जी, आई थिंक 25-30 तो पक्का ही होंगे जो प्रोफेशनली करते हैं, ज्यादा ही होंगे। इनफैक्ट 25-30 में कम बोल रही हूँ, बैंगलोर में भी हैं, कलकत्ता में भी है। सो 35-40 तो अभी जो ऑलरेडी कर रहे हैं वैसे हैं। ओके। तो जनरली फूड बिजनेस जो होता है ना, फूड बिजनेस क्या है कि हम लोग को लगता है कि ये बहुत ही इजी है, क्योंकि हम घर में 24 घंटा मतलब 12 घंटा अपने खाना बनाते हैं, किचन में रहते हैं। बट फूड बिजनेस हम लोग को लगता है बहुत इजी है और कोई भी कर सकता है। हाँ, इजी है, सब चीज इजी है, अगर आप उसमें अगर हार्ड वर्क करो तो एवरीथिंग इजी। तो उसमें क्या होता है कि ये तीन प्रकार के जो है फूड बिजनेस होते हैं जनरली। एक होता है एकदम स्मॉल सेटअप होता है, जो हम लोग घर में हम लोग होम शेफ्स बोलते हैं जिसको, होम शेफ्स जो घर से करते हैं। एक होता है थोड़ा मीडियम सेटअप होता है, जो कि आप क्लाउड किचन बोल लो, थोड़ा प्रोफेशनल उसमें चाहिए सब कुछ। और एक होता है रेस्टोरेंट बिजनेस। तो ये जो पूरा डिपेंड करता है कि आप कितना जो है वो आपका टाइम और कितना आप अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। जी। अब होम शेफ का क्या है कि होम शेफ एक बहुत ही बेसिक चीज होगी, इसमें आपको बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए और बहुत ही कम टाइम चाहिए। और मीडियम जो हो गया उसमें आपको जो है टाइम थोड़ा देना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका मेन बिजनेस हो जाता है। जनरली होम शेफ्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि भैया चलो करना है, खाली बैठे हुए हैं, क्या करें भाई, करते हैं, ठीक है। लेकिन आप जब उसको थोड़ा सा हायर कैटेगरी में चले जाते हो तो वो आपका एक बिजनेस हो जाता है कि भाई एक अल्टरनेट बिजनेस हमको करना है। तो उसमें क्या थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी लगता है, कम से कम 2-2.5 लाख 5 लाख का, और टाइम भी आपको काफी देना पड़ता है। और रेस्टोरेंट सेटअप तो सब जानते ही, रेस्टोरेंट सेटअप 50 लाख के ऊपर के नीचे कोई रेस्टोरेंट सेटअप होता है। जी सोनल। हाँ जी, तो बेसिकली ये 3 कैटेगरी में हो जाता है, एक है बेसिक, एक है मीडियम एंड एक स्टेट लेवल एंड एक होता है सेंटर लेवल। तो बेसिक में क्या है, जो होम शेफ्स के बारे में अभी राजेश शाह ने बताया था, फ्रॉम होम यू आर वर्किंग विद अ वेरी मिनिमम ऑफ द कैपिटल, एंड उसमें आपका जो भी प्रॉफिट अर्निंग होता है यू आर सेग्रीगेटिंग इट अलोंग विद द whatever supplies you are buying, how you're cooking, how you're rationalizing and how you're selling it. That is the basic, it's a very minimum amount. तो आजकल जो FSSAI के कारण ये जो अपने को लाइसेंसिंग लेनी पड़ती है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, if you're selling a product it is mandatory to take a license to be on the safe side. जैसे आज ये कोई बात नहीं हुई कि आपने एक प्लेटर बना के भेजे, वो एक बिजनेस नहीं हुआ। बिजनेस वो होता है जो एवरीडे बेसिस पे अपने करना चाहते हैं। तो उसके लिए फर्स्ट एंड फोरमोस्ट यू शुड नो द लॉ ऑफ द लैंड। तो लॉ ऑफ द लैंड होने जानने के लिए अपने को थोड़ा सा अपने लाइसेंसिंग वगैरह का पहले देखना पड़ता है, एंड वेरी मिनिमम टाइम लगता है, वेरी इजीली इट कैन बी डन। लाइसेंसिंग प्रोक्योरमेंट ऑनलाइन होता है एंड बहुत मिनिमम अमाउंट लगता है उसमें। जी एक्चुअली क्या है, हाँ ये होता है उन बिजनेस के लिए जिनका ग्रोथ 12 lakhs पर एनम से बिलो है।
उनके लिए ये प्रोक्योरमेंट की जरूरत है। राजेश मैं थोड़ा बताएंगे इसके बारे में। जी मैं थोड़ा एलाबोरेट करता हूँ। हमने जैसे तीन जो हमने बोले हैं कि तीन मतलब होते हैं, स्मॉल मीडियम एंड रेस्टोरेंट्स होते हैं। तो लेकिन फसाई वो ऐसे नहीं देखता है। फसाई देखता है कि भाई आप जो है वो कितना का बिजनेस करते हो, उसके ऊपर वो लाइसेंस देते हैं। तो उन लोगों ने तीन कैटेगरी रखी है अपने, जैसे 12 लाख के नीचे, 12 लाख और 20 करोड़ के बीच में, और 20 करोड़ के ऊपर। लाख लार्ज स्केल, लार्ज स्केल जो हो गया 20 करोड़ के ऊपर हो गया जो। हाँ जी, 20 करोड़ है कि 20 लाख है? 20 करोड़, 20 12 करोड़, लाख टू 20 करोड़ है। ओके 12 करोड़। जो सेकंड स्लैब जो है वो 12 लाख टू 20 करोड़ है, और थर्ड स्लैब जो है वो, और बहुत ही मिनिमम अमाउंट रखा है इन्होंने। जैसे आपका जो फर्स्ट स्लैब है, होम सेल्स टैक्स जो है उनको सिर्फ 100 रुपया देना पड़ता है हर साल। लेकिन हाँ, ओनली 100 रुपीज पर ईयर होम सेफ का लाइसेंस के लिए है। वो लाइसेंस नहीं बोलते, वो लोग उसको रजिस्ट्रेशन बोलते हैं कि भाई आप कोई भी फूड बिजनेस का काम करोगे अगर, तो फसाई से आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही है। तो अगर काम करते हैं तो लीगल पॉइंट बहुत जरूरी है। लीगली आपको पहले स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। जी सोना। हाँ जी, तो लीगल पॉइंट के बिना अपने कोई भी काम करेंगे तो आगे जाके अपने को तकलीफ होगी। एंड ये ऐसा है कि अपने कभी भी इसको चेंज भी कर सकते हैं कि आज हमारा सिर्फ 100 रुपया का है समझ लीजिए, तो कल हम उसके करोड़ का भी कर सकते हैं, तो वो चेंजिंग हो जाती है। मेरा एक क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस। सो सपोज इफ आई एम स्टार्टिंग नाउ, मैंने अभी सोचा है कि मैं इस दिवाली से स्टार्ट करूंगी प्लेटर्स बना के भेजना एंड ऑल दैट, तो क्या मुझे तुरंत अप्लाई करना चाहिए रजिस्ट्रेशन, कि मैं 1-2 महीने के बाद पहले अपना देख लूं कि मैं सही में करूंगी कि नहीं करूंगी? अच्छा कविता जी, एक चीज बोलूं मैं, पहले हम लोग सब पॉइंटर्स दे देते हैं, उसके बाद एक साथ सब क्वेश्चंस ले तो बेटर होगा। परफेक्ट, ठीक है, ओके। जो भी क्वेश्चंस आते हैं आप क्या कीजिएगा, उस क्वेश्चंस को आप नोट कर दीजिएगा, ठीक है, और फिर एक संग हमें बताइएगा। तो उसमें क्या होगा देखिएगा, बहुत सारे मेंबर्स के क्वेश्चंस जो है वो सेम हो जाएंगे। ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद हम लोग मेंबर्स को ये भी बताना चाहते हैं कैफेटेरियंस को कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है सीएमटीसी की तरफ से, आपको गिफ्ट भी है और एक क्विज सेशन है। हम लोग कुछ क्विज करेंगे और उसकी जज होंगी ऑफ कोर्स कविता जी। तो हाँ जी कविता जी, आप जज होंगी, और जिसके सबसे ज्यादा आंसर्स होंगे उनको जो है वो सीएमटीसी की ओर से एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट मिलेगा जी। हाँ, तो फर्स्ट पॉइंट है लॉ के बारे में सोनल जी, उसके बाद तो ये 7 पॉइंटर्स जो हैं, अपने कोई भी बिजनेस शुरू करें चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये 7 पॉइंटर्स को अपने को हमेशा ध्यान रखना है। फर्स्ट इज हाउ टू नो द लॉ ऑफ द लैंड। सेकंड इज टू फाइंड योर niche in the sense you have to find what you are apt in doing, आप क्या चीज में माहिर हो और आप कौन सी एरिया में उसको डेवलप कर सकते हो। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि अगर हो सकता है आप चाहे समझ लीजिए कोई बंगाली एरिया में ज्यादा ध्यान दे रहे हो, तो यू वुड प्रिफर टू गिव देम द टेस्ट अकॉर्डिंग टू दैट पैलेट। So we cannot develop a North Indian menu in a Bengali region where people are more interested in having the Bengali version of the food. So we have to think about that. Are people interested in that part? So accordingly, we have to find our niche. This is the second point. Mr. Rajesh, please elaborate on this, Rajesh Bhaiya. हाँ जी, सेकंड पॉइंट जो बोले वो ऐसा है कि अगर किसी को ब्रेड बनाना बहुत अच्छी तरह आता है और वो सोचेगा कि नहीं भाई मैं ब्रेड नहीं बना के अब मैं रसगुल्ले बनाऊंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपको ब्रेड बहुत अच्छी तरह से बनाना आता है तो आप ब्रेड बनाइए। दूसरी बात ये है कि इन्होंने कहा कि अगर आप बंगाली एरिया में रहते हो और आप सोचोगे कि भैया दाल बाटी चूरमा बनाओ, तो दाल बाटी चूरमा से उनको क्या, वो तो माछ भात जानते हैं, अभी तो माछ भात खाओ, इजंट इट? तो ऐसा है कि भाई आपको बंगाली, अगर आप बंगाली एरिया में है तो आपको उनको कढ़ाई शोटी, कचौड़ी और आलू दम, समोसा, वो सब आपको देना होगा। अभी फिर भी मेट्रोपॉलिटन एरिया में क्या हो गया कि बंगालीज भी बहुत अच्छा खाना सीख गए। हाँ, और जो क्राउड है हमारा, जो आसपास का एरिया है, उसको देख के ही हमें जो है अपना बिजनेस सेटअप और हमारा मेन्यू डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना? और आप अपना फोर्टे देखिए, जैसे कि आप जानते हो, आप स्वाति सराफ को आप जानते हो सभी कोई, वो रसगुल्ला क्वीन है।
ठीक है ना। तो स्वाति सराफ जो है वो उसने जो पहली जो डिश बनाई थी और उसने जो पहला अपना रसगुल्ला है वो हमें खिलाया था, और उसकी कम से कम 22 या 23 जो रेसिपीज है वो हमने दी हुई थी, जब स्टार्टिंग में आज से 3 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो अगर वो रसगुल्ला बनाती है तो वो रसगुल्ला ही बनाए, और उसने 270 रकम के रसगुल्ले बनाए और अभी वो ऑल ओवर इंडिया बहुत ही फेमस है। जी सोनल जी। हाँ जी, तो ये जो है कि भाई फाइंड योर निश, एक आपके दिमाग में होना चाहिए, आई एम परफेक्ट इन दिस फील्ड। आज मैं अगर केक्स में परफेक्ट हूँ तो मेरे को केक्स को ही डेवलप करना चाहिए। लेटर स्टेज वी कैन develop our knowledge and then we can include those also in our menu. So first of all you should start with what you know best. Okay. अब थर्ड पॉइंटर पे अपने आते हैं, कहाँ से हम सोर्स करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। आज कोविड की टाइम्स है, कोविड टाइम्स में ऐसे सब कुछ फिनिकी हो रखे हैं, तो अपने को ये रहना चाहिए कि अपने जहां से प्रोक्योर कर रहे हैं अपने रॉ मटेरियल वो एकदम परफेक्ट हो, अच्छे क्वालिटी के हो, एंड वी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, never compromise on this matter, because what you make and give to others, it should be liked by them and should be like कि they are satisfied with what you have given them, कि भाई उनके हेल्थ को भी हैम्पर नहीं कर रहा है और उनके टेस्ट बड्स को भी बहुत प्लीजिंग लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राजेश भैया बोलिए इसके बारे में। और हाँ, ये सप्लाईज बहुत ही जरूरी है, और हमारे जो सप्लायर्स होते हैं वो बहुत ही जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि आप अभी कोविड टाइम्स में हमने देखा है कि बहुत बार हम क्या करते हैं कि ऑनलाइन सब्जी वगैरह मंगाते हैं। तो भाई रात को हमको खाने की इच्छा हुई कि भाई रात को आज बैंगन बनेगा, आपने ऑनलाइन उनको ऑर्डर तो दे दिया, और जब आप सब्जी खोलते हो देखते हो बैंगन ही नहीं है, उसने भिंडी दे दी, isn't it? तो जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ये ऐसे नहीं चलता है। आज क्या है कि मेन्यू आपका एक डिसाइड हो चुका होता है कि भाई आज हम लोग ये 4 ये बनाएंगे, आज पनीर बनाएंगे, आज कोफ्ता बनाएंगे। तो सप्लायर्स इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो सप्लायर्स को हम बोलेंगे कि भाई हमको ABCD ही चाहिए, तो वो ABCD ही आनी चाहिए, वो XYZ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर वो XYZ आएगा तो आपका मेन्यू है वो पूरा उल्टा हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज जो है वो रेस्टोरेंट बिजनेस जीरो हो गया। आज रेस्टोरेंट बिजनेस जीरो हो जाने के इसका फायदा सीधा फायदा क्लाउड किचन और होम शेफ्स को मिला है। और क्लाउड किचन और होम शेफ्स को इसलिए मिला है कि लोग ये जानते हैं कि भाई होम शेफ्स होते हैं वो घर में अपने हिसाब से साफ सुथरे तरीके से खाना बनाएंगे और हमें बेचेंगे, और उनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। तो सप्लायर्स की क्वालिटी एक तो बहुत अच्छी होनी चाहिए, और सप्लायर्स को हम जो बोले सप्लायर्स को वही हमें देना चाहिए। भाई हम बोलेंगे मोज़रेला चीज और वो जो है चीज क्यूब भेज देगा तो हमारा पिज्जा है वो गड़बड़ हो जाएगा। जी सोनल आगे। हाँ जी, नाउ फोर्थ पॉइंट अपना आता है हाउ टू क्रिएट योर ब्रांड। देखिए ब्रांड क्रिएशन के लिए सबसे पहले यू हैव टू कीप इन माइंड कि आप कौन सा नाम लेते हो। नाम ऐसा होना चाहिए that resonates with you also and also with the food which you are supplying. So ये एक बहुत अहम मुद्दा हो जाता है कि नाम से भी लोग अपने इम्प्रेस होते हैं। आज हम लोगों ने कुकिंग मेनिया रखा विद टॉप शेफ्स, तो हमारा मोटो बिहाइंड इसमें यही था, हम लोग सारे क्रेजी पीपल हैं फूड को लेके, हमको जो चाहिए चाहिए, ये सबकी एक क्वालिटी होती है। तो हम लोगों ने वही मोटो को दिमाग में रखते हुए कुकिंग मेनिया विद टॉप शेफ्स क्रिएट किया कि भाई हमारे शेफ्स जो हैं, चाहे वो छोटा सा शेफ हो, चाहे वो होम क्यूरेटर हो, लेकिन वो अपने आप को टॉप समझे, इसीलिए हमने ये नाम चूज किया। एंड इट्स ऑल्सो रियली रेलिवेंट कि आज की दुनिया में लोग इम्प्रेस होते हैं कलर से, ब्रांडिंग से, लेबलिंग से, सब चीज। So generally you will see in food industry very popular colors are to attract you, orange, yellow, red. ये तीन क्यों होते हैं colors main? Because these are the colors for food to give pleasantness, to give brightness. तो ये color इसीलिए choose किया जाता है in food industry. This is the main reason behind it. ये affect करता है अपने psychology को. So whenever you're going for a labeling or a branding, always keep in mind that for health, if you're going, choose the colors of green and blue, because that relates to the health, mother earth, nature, which we are out of this nature, and अपने को खाना भी with nature collaborate रहना चाहिए। तो इसीलिए green and blue are the color for health related dishes, and red, orange, yellow are the color for any type of food item which is pleasing to the consumer. So आपके दिमाग में हमेशा ये 2-3 बातें रहनी चाहिए। Then you have to create your online store. राजेश
बताइए। जी हाँ, तो इन्होंने जो बोला ब्रांडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नाम बहुत ही जरूरी है। नाम इसलिए जरूरी है कि भाई आप देखिए आजकल कलकत्ता में एक बहुत ही चाय फेमस है, उसको कहते हैं फालतू चाय। आप लोग आप लोग ने, अब ये क्या है कि तुरंत जो है वो लोगों के नाम पे आ जाता है, फनी भी है और लोग उसको पसंद भी करते हैं। तो नाम ऐसा होना चाहिए कि लोग जो है उसको एकदम तुरंत लाइक करें, पहली बात। दूसरी बात लेबलिंग, लेबलिंग इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप मार्केट में जाएंगे, आप जब होम शेफ्स के बारे में अगर हम बात करें या क्लाउड किचन के बारे में हम बात करें, तो क्या है जब आपका खाना अगर किसी के यहाँ जाता है, तो वो खाना जब टेबल पे उस पे रहता है, तो वो क्या है, वो व्हाइट बॉक्सेस जो होते हैं, वो बॉक्सेस है, वो एक प्लीजिंग नहीं लगता है। आपका जो है लेबल बहुत अच्छा होना चाहिए, लेबल के ऊपर आपका नाम बहुत प्रोमिनेंट होना चाहिए। क्योंकि जब भी क्या है कि लोग अगर स्वाद करते हैं कि भाई आज जो है इनके यहाँ से एक जो है दही बल्ले आए हैं, तो ये दही बल्ले जैसे ही मैं खाऊं, तो वो क्या है आपका लेवल मेरे दिमाग में आ जाना चाहिए। तो इसलिए लेबलिंग भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जी सोना। हाँ जी। अब ये मेन मुद्दा है प्राइसिंग, हाउ टू प्राइस योर प्रोडक्ट्स। देखिए सबसे पहली बात है, आप जो भी सप्लाईज लेते हो, यू शुड बी वेरी रीजनेबल इन टेकिंग इट। ये नहीं है कि मैं सिर्फ 10 लोगों के लिए खाना बनाऊंगी, लेकिन मैं 25 लोगों का खाने का सामान मंगवा लेती हूँ, बाद में वो चाहे पड़ा रहे सड़ा रहे, फिर बाद में अपने यूज करते हैं। वेरी रॉन्ग। आप बी वेरी फोकस्ड इन दिस, बिकॉज अगर आप खराब चीज अपने कंज्यूमर्स को दोगे, you will get a bad name. Reputation is very important in this field. If you do not create a good reputation, people will not follow you. People will not come back to you. That is very important. So you have to create a niche for yourself in this food world. For creating that, you have to procure very good material, and you should procure in such a way that it is utilized to the full potential. आपको ऐसा नहीं लगे कि मैं ये वेस्ट कर दी, तो पैसे तो आपके लग गए, और वो पैसे किस में जाएंगे, आपकी प्राइसिंग में जाएंगे। So why unnecessary to increase the price when you can decrease it and make it more available to the consumer? So that is very important. Another thing is how you will market it. आज के आपके सामने अगर एक अच्छा सुंदर सा पैकेज किया हुआ फूड आता है, तो आप आधी बार तो ऐसे ही सोच लेते हो, वाह कितना सुंदर है, ये तो मैं जरूर खाऊंगी, दोबारा भी मंगवाऊंगी। तो पैकेजिंग आप जिस तरीके से करते हो, अगर गर्म है तो गर्म जाना चाहिए कंज्यूमर के पास, ठंडा है तो ठंडा जाना चाहिए कंज्यूमर के पास। ऐसे नहीं कि उनके घर तक पहुंचा तब तक वो चीज एकदम बर्बाद हो गई। एंड यू नो वेरी मच दैट केमिकल रिएक्शन ऑफ फूड रियली increases or decreases the taste in your taste buds. It's very important point. इसलिए जो चीज गर्म आपको खानी चाहिए, वो अगर आप ठंडी खाओगे तो आपको वो टेस्ट मजा नहीं आएगा, तब आपको लोगों का वो इतना फीडबैक अच्छा नहीं मिलेगा। इसलिए ये बहुत मेजर पॉइंट है, आप किस तरीके से खाने को भेजते हो बाहर। जी So बहुत ही these are the अच्छा। 7 pointers. Yeah. जी ये जो पैकेजिंग की बात है, इसमें मैं आपको 2 एग्जांपल्स दूंगा। पहला एग्जांपल दूंगा कि हम लोग तो चाय फ्रीक्स से हम लोग चाय बहुत पीते हैं, सभी को यहाँ चाय बहुत पीते होंगे। तो चाय हम लोग जब घर में पीते हैं, हम लोग सेरेमिक कप में पीते हैं, उसका टेस्ट जो है वो एक हम लोग को बहुत ही अच्छा रहता है। वही सेम चाय अगर आप सिकोरों में, मिट्टी के सिकोरों में पियोगे, तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो एक बात ये। दूसरी बात, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा रजत भुतोड़िया जी का। रजत भुतोड़िया जी वो स्टेडल जो आप जानते हैं, सॉल्ट लेक स्टेडियम के एक अंदर में 4 स्टार होटल है। तो उन्होंने क्या किया, उनके यहाँ पे एक पार्टी थी, तो पार्टी में उन्होंने किसी के यहाँ से कोई केक मंगाया। तो केक तो आ गया, केक बहुत ही अच्छा था, एक्सपेंसिव केक था, आया, लेकिन उसके बाद में वो केक का टेस्ट है वो जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। क्योंकि वो केक को जो है वो लाना था आइस बॉक्स में, लेकिन जो जिन्होंने भेजा था उनको इतनी नॉलेज नहीं होगी जो भी है। अब ये क्या, रजत जी है, लंदन रिटर्न है, तो उनके दिमाग उन्होंने दौड़ाया कि भाई ये तो गलत चीज है भाई, अगर लोगों को अगर इस तरह से मिले और उनका सेलिब्रेशन अगर गलत हो जाए या खराब हो जाए तो ये तो सही नहीं। तो उन्होंने क्या किया, क्रैम कप बोल के इन्होंने अपना एक खुद बेकरी इन्होंने स्टार्ट की, जो कि 100% वेजिटेरियन है। और उन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान दिया है उसकी पैकेजिंग के ऊपर। अगर आप कभी भी क्रैम कप से कुछ भी अगर मंगाओगे, तो आप देख लोगे उनकी जो पैकेजिंग होती है, मार्वलस पैकेजिंग होती है। वो आइस क्यूब्स डाल के आपको केक भेजते हैं और इतने अच्छी तरह से भेजते हैं कि आप मतलब वो स्टैंडर्ड जो है वो एकदम ही वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड है, और प्राइसिंग भी उसकी ज्यादा नहीं है।
तो ये तो हो गया। प्लस प्राइसिंग के बारे में जो सोनल ने कहा कि हाँ, प्राइसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर होम सेफ्स है तो हमारे थोड़ा सा प्राइस तो ज्यादा होगा ही, तो ठीक है थोड़ा ज्यादा होगा ही, लेकिन लोग समझते हैं कि होम सेफ रहेगा तो इनका प्राइस ज्यादा होगा क्योंकि इनकी क्वालिटी भी बेटर है। तो अगर क्वालिटी हम बेटर देते हैं तो लोग प्राइस देने के लिए भी रेडी होते हैं। तो प्राइसिंग फिर भी कम्पिटिटिव होनी चाहिए, क्योंकि रेस्टोरेंट्स जो होते हैं वो बल्क परचेसिंग करते हैं। प्लस रेस्टोरेंट का क्या होता है, एक कड़ी जो बनती है वो 30 दिन 40 दिन के लिए एक ही कड़ी बन जाती है, वही कड़ी वो लोग यूज करते हैं 40 दिन 50 दिन के लिए। तो प्राइसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी सोनल। हाँ जी, तो अब अपने इतना सारा पॉइंटर्स तो आप लोगों को दे दिए। आपको जब भी कोई भी हिच लगे, कोई भी टेक्निकल आपको प्रॉब्लम नजर आए, यू कैन इजीली कनेक्ट विद अस, नो प्रॉब्लम। सोनल थोड़ा इंटरप्ट करता हूँ। इसके अंदर में अब मेन फैक्टर्स सब आ गए, लेकिन एक चीज है, दो चीजें जो है वो अभी भी हमने डिस्कस नहीं की है। एक तो है कि मार्केटिंग इनके प्रोडक्ट्स कैसे होंगे, प्लस जो लॉजिस्टिक्स है वो कैसे होंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो थोड़ा मार्केटिंग के बारे में बताइए, लॉजिस्टिक्स के बारे में बताइए। तो मार्केटिंग का ऐसा है कि यू कैन डू ऑनलाइन मार्केटिंग। अभी कोविड टाइम्स में ऐसे भी बूम पे है ऑनलाइन मार्केटिंग। तो आपको अपना एक ऑनलाइन वेबसाइट जो भी क्रिएट करना है वो क्रिएट करना है। उसमें लेकिन आप जो भी मेन्यू डालोगे उसका प्राइसिंग एंड थोड़ा अपने बारे में, थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में आप लोग जरूर बताना, क्योंकि लेबलिंग मैटर्स। आज की दुनिया में सब कोई इतने अवेयर हो गए हर चीज के लिए, तो अपने को बहुत ऑनेस्टली, सबसे बड़ी चीज है अपने बिजनेस में जब भी आप करो, कीप द ऑनेस्टी लेवल वेरी हाई। इफ लाइफ इज दिस, यू हैव टू टेक दिस, दैट इज द मोटो, इट शुड बी। बिकॉज क्या होता है, अपने चीज तो ले लेते हैं, हाँ कर लेंगे कर लेंगे, फिर अपने को आलस आ जाता है। होम शेफ्स की ये क्वालिटी है कि भाई कोई भी आया, आज मेरे घर में गेस्ट है, आज मैं नहीं कर पाऊंगी, तो पहले से आप इन्फॉर्म करो अपने कंज्यूमर्स को। कंज्यूमर्स को वहां पर आपका धोखा नहीं लगना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपकी वेबसाइट जो डेवलप होगी उसमें सारे नॉर्म्स रहेंगे कि हमको आज इट विल नॉट बी ऑपरेटिंग फॉर 2 days, वी आर हैविंग सच प्रॉब्लम्स। So you give there over there a specific date, a specific time कि हाँ हम लोग नहीं ऑपरेट कर पाएंगे, तो people will understand everyone has problems. And second, logistics. Logistics बहुत important है, क्योंकि transfer of food really changes the taste, I told you before. तो इसलिए लॉजिस्टिकली आप लोग कहीं से भी कनेक्शन करना चाहते हो, जैसे स्विगी हो, जेनी हो, उबर ईट्स हो, व्हाटएवर, जोमैटो हो, फूड पांडा हो, लेकिन आपको टाई अप ऐसा रहना चाहिए कि भाई आपका कोई भी प्रोडक्ट में वेरिएंस नहीं आए जब तक वो पहुंचे वहां। अगर आपकी टाइम लिमिट है हाफ एन आवर, तो वो हाफ एन आवर में पहुंचना चाहिए। इस टाइप का आपका सेटअप उनके साथ वायबल रहना चाहिए। राजेश, मार्केटिंग के बारे में, मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज के टाइम में मार्केटिंग के ऊपर ही सब चीज बिकता है। एक तो है, पहले हमने देखा कि हमने क्या किया, ब्रांड सप्लाई की, लेबलिंग की, अच्छी लेबलिंग की, अच्छी हमने ब्रांड बना ली, लेकिन हम मार्केटिंग नहीं कर पाए। अगर मुझे मालूम ही नहीं है कि भाई इनके ये बनाते हैं ये चीज, इनके यहाँ वो चीज मिलता है, तो मैं आपको ऑर्डर कैसे दूंगा। तो मार्केटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मार्केटिंग के लिए हर समय आप प्रोफेशनल्स को ही यूज कीजिए, क्योंकि मार्केटिंग प्रोफेशनल जितनी अच्छी तरह से कर सकेंगे उतनी अच्छी तरह से आप नहीं कर पाओ। तो मार्केटिंग के लिए प्रोफेशनल्स बहुत, वो आपको क्या करेंगे, ब्लॉगर्स के संग आपका मीट करवाएंगे, अलग अलग साइट्स पे आपका नाम देंगे। उससे क्या होगा, आपके मेनू, हर जगह आपका मेनू जो है वो 10 लोगों के पास आपका मेनू चला जाएगा। उससे क्या होगा कि 50 लोग 100 लोग आपके बारे में जानेंगे। 100 लोग आपके बारे में जानेंगे तो 25 लोग जो है वो आपके बारे में सोचेंगे, और 25 लोग अगर आपके बारे में सोचेंगे तो 10 लोग आपका जो है वो ऑर्डर करेंगे। और 10 लोग जो ऑर्डर करेंगे उसमें 5 जो है वो आपके क्लाइंट्स बन जाएंगे होल ईयर के लिए। ये आप याद करें। दूसरी बात है, प्रोफेशनलिज्म बहुत जरूरी है। आपका फोन है, फोन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ऑर्डर फोन पे आया, फोन आप रख दोगे, कोई बच्चा उठाया, अब क्लाइंट ने फोन करना है, क्लाइंट ने आपको ऑर्डर देना है, ठीक है, अब बच्चे ने उठा लिया, हाँ मम्मी तो नहाने गई है, अंकल आप बाद में फोन कीजिए। उतना टाइम नहीं रहता भाई साहब आज के टाइम में। तो आपका ये प्रोफेशनलिज्म बहुत जरूरी है। अगर आप बिजनेस में हो, आप जब कहीं भी इधर उधर जाते हो, आपका फोन जो है वो उस पर्सन के पास होना चाहिए जो ऑर्डर ले सके और क्लाइंट के संग अच्छी तरह से बात कर सके।
ये मैं सिर्फ होम शेफ्स को और क्लाउड किचनों के बारे में बता रहा हूँ। रेस्टोरेंट्स तो बहुत प्रोफेशनल होते हैं, उनकी बात अलग है। दूसरी बात है लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स बहुत जरूरी है। हम बहुत लोग स्विगी, जोमेटो और उबर ईट्स से खाना मंगाते हैं, लेकिन जब खाना मंगाते हैं आप देखते हैं आपके घर में आते आते आधी दाल तो प्लास्टिक के अंदर ही गिर चुकी है। ठीक है ना? तो जब भी आप जो है वो खाना देते हो जोमेटो वाले को या किसी भी आप जो भी डिलीवरी पर्सन को, आपको पर्टिकुलरली उसको ये बताना है कि भाई इसमें ये चीज है, आपको इस तरह से लेके जाना है, ताकि वो जो खाना है जिसने ऑर्डर किया उसके यहाँ पहुंचे तो वो खाना एकदम परफेक्ट तरीके से पहुंचे और जिसने ऑर्डर दिया उसका कोई लॉस ना। कि ये जो पॉइंटर्स है, ये पॉइंटर्स खत्म हो गए सोनल, आगे। हाँ जी, अब ये पॉइंटर्स तो अपने खत्म हो गए, अपने क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, लेकिन उसके पहले मैं एक छोटा सा क्विज रन करना चाहती हूँ। आई विल गिव यू ऑल 5 क्वेश्चंस एंड 5 क्वेश्चंस राजेश सर विल बी गिविंग यू। तो इनका जो आंसर्स पहले देगा वो कविता फॉलो अप करती रहेगी, उनको हमारी तरफ से जो विनर होगा उनको गिफ्ट मिलेगा। सोनल, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हम लोग क्विज लास्ट में रखते हैं, क्योंकि लास्ट में रखेंगे तो क्या होगा कि मेंबर्स भी यहाँ पे बने रहेंगे गिफ्ट के चक्कर में। वरना क्या होगा कि भैया आप क्विज खत्म कर लिए तो सब इधर उधर, चाय का भी टाइम हो गया, सब इधर उधर निकल जाए। तो पहले क्वेश्चंस ले लीजिए, उसके बाद लास्ट में जो है वो क्विज रन करेंगे गिफ्ट के लिए। तो कविता, आर वी रेडी विद द क्वेश्चंस देन? Yes. So I have a few questions from the members. So first question तो यही है कि सपोज आज मुझे रजिस्ट्रेशन कराना है अगर फसाई के साथ, तो मुझे क्या पहले मैं ये सोच लूं कि मैं बिजनेस कंटिन्यू कर रही हूँ 3-4 महीने, तो क्या मैं 3-4 महीने निकाल सकती हूँ कि नहीं, मुझे इमीडिएटली कराना चाहिए द डे आई थिंक कि आई वांट टू स्टार्ट समथिंग? देखिए, ऐसा है कि बिजनेस कभी भी स्टार्ट करने से पहले आज जो है वो ट्रेड लाइसेंस बहुत जरूरी है। अगर आप फूड बिजनेस नहीं करते हो तो कोई दूसरा बिजनेस भी करते हो, तो अगर आपको सबसे पहले ट्रेड लाइसेंस की बहुत जरूरत पड़ती है। विदाउट ट्रेड लाइसेंस आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। करेक्ट। उसी तरह से आप अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप क्या करो कि सबसे पहले जो है वो उसका जो लॉ के हिसाब से आप सबसे पहले लाइसेंस ले लो। लाइसेंस लेने में कुछ नहीं है, 100 रुपया लगता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, आप करवा लो। नहीं, ऐसा है कि अगर आपको करना ही है बिजनेस, देखिए इसीलिए मैंने सबसे पहले कहा था कि फाइंड योर निश, फाइंड वो योर कैपेबिलिटी। अगर आपको करना ही है तो व्हाई नॉट गो द लीगल वे, व्हाई टू अननेसली क्रिएट हैजल्स फॉर योरसेल्फ। ठीक है, आज हमने किया है, नहीं करेंगे कोई बात नहीं। कितना लगा लाइसेंसिंग? अगर ट्रेड लाइसेंस भी लेते हैं तो 4,500 में आ जाता है। फिर अपने को लार्ज सेटअप करना है तो वी कैन इजीली इम्प्लीमेंट दोज लाइसेंसेस अगेन, वी कैन इंक्लूड दोज। So when you start, if you're really wanting to do, start with legal action. With the लाइसेंस के बारे में मैं बता दूं कि जो है वो अप टू, मैंने आपको बताया था कि 0 to जो 12 लाख है उसके लिए 100 रुपीज पर ईयर है, और 12 लाख से जो 20 करोड़ तक जो है उसके लिए 3,000 रुपए है, और 20 करोड़ के ऊपर जो है वो 7,500 रुपए है। तो ये जो फीस है, ये फीस भी इतनी कोई ज्यादा नहीं है, पहली बात। रेन्यूअल भी बहुत कम है, हर ईयर रेन्यूअल करवा, और ये 5 साल के लिए होते हैं लाइसेंस, तो रेन्यू भी होता है ना, तो 100 रुपीज का रेन्यू। आई थिंक थोड़ा सा चेंज हो गया इनका प्राइसिंग में, हो सकता है। हाँ, बिकॉज मैंने कल ही चेक किया था फसाई का, सिंस वो जब आर्टिकल आया ना तो मैंने चेक किया था, तो उसमें आया है कि 4,000 रुपीज है आपका फर्स्ट ईयर का, ओनली फॉर रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस की बात नहीं कर रही हूँ। ये आप जो बोल रहे हो कविता जी, आप जो बोल रहे हो, आपने किसी एजेंट की साइट में आप गए होंगे। कोई एजेंट? नहीं, फसाई की साइट पर ही है। नहीं, फसाई की साइट में नहीं है। आप फिर एक बार चेक कर लेना। आप जो बोल रहे हो ये 4,000 रुपया जो लेगा वो आपसे वो एजेंट लेगा, या वो एजेंट की साइट होगी, वो फसाई की साइट बोलते हैं, लेकिन वो फिर आप जो है ना डाइवर्ट होके दूसरी जगह चले जाते हो। फसाई आपसे पर ईयर 100 रुपया ही लेगा। लेकिन मैं फिर से चेक कर लूंगी, बट जी। हाँ। लेकिन अभी बात ये है कि अब होता क्या है, मैं आपको एकदम नहीं, वो 100 लगे चाहे 500 लगे चाहे 5,000 लगे, बेसिकली आपको करा लेना चाहिए। हाँ, लेकिन इसमें क्या है कि बहुत जरूरी है अपने को जान लेना। जैसे अभी कैलकाटा एंड परगनास, दैट इज नॉर्थ परगनास एंड साउथ परगनास, इसमें क्या है कि ऑनलाइन लाइसेंस नहीं हो रहा है। इसके वजह ये है कि जैसे अगर आप लाइसेंस कराने फिजिकली जाते हो तो आप क्या है कि उनको कुछ 1,000-2,000 रुपया आपको देना पड़ता है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन जाते हो तो वो चीज
नहीं आप देते नहीं हो, लगता तो है। वो क्या हुआ है कि थोड़ा-सा जो है वो प्रॉब्लम हो गया है उन लोगों के लिए, इसलिए क्या किया उन्होंने कि ऑनलाइन जो है अभी कलकत्ता और लेकिन अगर आप नदिया है या सिलीगुड़ी अगर आप रहते हो या आपके कोई भी और सिटी में रहते हो अपार्ट फ्रॉम कलकत्ता, तो आप तो आप ऑनलाइन कर रजिस्टर सकते करवा हो। सकते हो। हाँ जी, ओके, हाँ जी, हाँ जी। ओके, ओके। जी। सेकेंडली एक चीज मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे जो ड्राई मसालास या इस टाइप का जो काम करते हैं नॉट प्रॉपरली, माने कोई फूड नहीं डिलीवर कर रहे, तो क्या ये लाइसेंसेस उनके लिए भी एप्लीकेबल है? हाँ जी, जी, applicable है। ड्राई मसाला तो फूड ही हो गया, प्लस क्या है ये मैन्युफैक्चरिंग भी हो गया। देखिए एक ओके, चीज़ आप देखिए, आप जो है ये ड्राई मसाला जो है ये मैन्युफैक्चरिंग में आ जाता है, तो इसमें तो आपको ट्रेड लाइसेंस भी चाहिएगा, इसमें आपको जीएसटी भी चाहिएगा और प्लस इसमें आपको फसाई भी चाहिएगा। ओके, ISI भी चाहिएगा इसमें, क्योंकि these are masalas which will be put in, which will be फूड। added in food. तो हम्म, हाँ, इसीलिए वो ISI या एग मार्क जो भी होता है एडमार्क जो भी एग्रीकल्चर है वो प्रोडक्ट, हाँ वो भी जी, जी, लेना पड़ेगा। जी, जी। सो अब कुछ भी एग्जेम्प्ट नहीं है, मतलब आप अगर 10 नहीं, पैकेट भी बना रहे हो तो आपको हम्म, लेना पड़ेगा सारा हाँ जी, लाइसेंसेस। देखिए अगर आप अपने बिज़नेस को प्रोफेशनली रन करना चाहते हो और ये सोचते हो कि नहीं भैया मुझे इससे रुपए कमाने हैं या मुझे इसको अपना प्रोफेशनल मुझे इससे हाँ, अपना करियर बनाना है, तो तो फिर आपको ये लेना सब चीज़ चाहिए। करना है। और अगर आप एब्सोल्युटली। ये सोचते हो कि नहीं भैया आज मैं मसाले बनाऊँगी और आज मैं मसाले बना के आज सोनल को दे दूँगी, आज कविता जी को दे दूँगी और कल जो है मैं पिक्चर देखने चली जाऊँगी, कल मैं कुछ नहीं करूँगी। तो फिर आप कुछ मत करो फिर। करेक्ट। नहीं अगर प्रोफेशनली करना है हाँ, तो एकदम ऑनेस्टी के साथ, एकदम डिवोशन के साथ करना पड़ेगा, एब्सोल्युटली। तभी आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा। ये नहीं कि 4 दिन मैं काम करूं 10 दिन मैं सो जाऊं, वो काम नहीं होता है यहाँ पर। फूड बिजनेस इज एवरीडे जॉब, एवरीडे एब्सोल्युटली, जॉब। आज अपना एब्सोल्युटली। एवरीडे किचन जॉब लॉकडाउन में 365 डेज़ जॉब है। एंड एक्चुअली इनफैक्ट फेस्टिवल्स में ज्यादा काम करना और पड़ता ज्यादा है। हो जाता है। ये आज आप पूरी नहीं बोल दुनिया सकते हो। लॉकडाउन में थी। देखिए आज पूरी ऐसा दुनिया, है ना। एक सेकंड, हाँ हाँ, हाँ, सोनल आप बोलो। हाँ, आज पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी, अपना हम्म, किचन लॉकडाउन में कभी नहीं नहीं था। था। एब्सोल्युटली, यस। सो देखिए दैट्स व्हाई। आप ये नहीं बोल सकते हो कि फेस्टिवल्स में ही आपको प्रेशर होगा। अगर बहुत ही अच्छा खाना है, आपका जो बहुत ही अच्छा ये है, तो आपको रोज़ प्रेशर रहेगा। ठीक है ना? हम्म। आज मेरे यहाँ बर्थडे है, कल उनके यहाँ पार्टी है, कल उनके एनिवर्सरी है। हाँ, तो यू हैव ये टू फूड अगर मैनेज, बिजनेस इज समथिंग व्हिच विल यू हैव नेवर टू गो मैनेज। डाउन एक्चुअली। यस यस कुछ ना कुछ आपका तो होता ही है। काम आपका काम बोलता है, आपका काम बोलेगा, आपका फूड बोलेगा। यस। पहले तो आप एब्सोल्युटली। मेरे प्लेट पे जब भी आपका फूड आएगा, अगर आपका फूड स्वादिष्ट होएगा, तो मैं भी रिकमेंड करूँगा कि नहीं जी, कविता जी बहुत अच्छा खाना बनाती है, आप उनसे ऑर्डर करो। तो वर्ड ऑफ माउथ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यस। एंड वो लिंगरिंग इफेक्ट जो होता है ना, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। तो वो हाँ, कब आएगा? जब अपने ऑनेस्टी के साथ काम करेंगे। काम करेंगे। या एब्सोल्युटली, यस। जी। So any more questions from the members? If anyone has, you can raise your hand. किसी को अगर कुछ पूछना हो तो, अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेज मैंने कर बीच सकते में हो। देखा था 2-3 हैंड रेज हुए थे। हाँ, एक्चुअली मुझे नाम नहीं कुछ पता। क्वेश्चंस मुझे प्राइवेट में आ गए, वो मैंने पूछ लिए आपको। अच्छा 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 अच्छा। हाउ टू प्राइस, या सो वो एक बहुत लाइक मेजर क्वेश्चन है। मेजर क्वेश्चन। सी તો लाइक आई ગુજરાતી सेड यू, ગુજરાતી બેન છે ને એટલે જસાણી બેન ગુજરાતી હાઉ ટુ પ્રાઇસ પૈસા પહેલા बताइए हाँ राजेश। जी हाउ टू प्राइस ये तो एक बहुत ही मतलब डिपेंड्स क्या ऑन बोलते फ्रॉम वे यू टेक कॉम्प्लिकेटेड योर चीज है। सोर्सेस। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है ये प्राइसिंग जो है ये आपको मैंने कहा था कि इसके लिए आपको प्रोफेशनल हेल्प लेना बहुत जरूरी है। इसमें क्या ताकि है यू कैन पहले गेट तो द रॉ मटेरियल फ्रॉम अ प्रॉपर एजेंट एंड इन अ लो प्राइस आल्सो। जी ये तो चीज है नहीं ट्रेड कर रहे हैं भाई 100 की चीज ले ली 110 में बेच दी ऐसी चीजें तो है। हम्म। तो ये क्या है प्राइसिंग जो है ये बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड चीज है। इसमें क्या है कि आप का सोर्स क्या है, क्या चीज आप बना रहे हो। ये चीज बहुत ऐसी चीजें हैं कि भाई आज अगर हम लोग कोई स्वीट बनाते हैं और हम लोग को सैफरॉन का हम लोग को बहुत इसमें जो है इस्तेमाल होता है। तो हम्म। सैफरॉन आज ₹1,00,000 है, कल ₹2,00,000 है, परसों ₹2,50,000 है, फिर 50,000 है, फिर ₹2,50,000 है। तो ये चीज अपने को क्या दिमाग में रखनी पड़ेगी कि सैफरॉन तो हम लोग इतना यूज करते हैं तो एवरेज प्राइस निकाल ले कि भाई साल में इसका एवरेज प्राइस 2 लाख होता है पर किलो। तो हमको इतना सैफरॉन लगता है तो हम 2 लाख के हिसाब से ही रखते हैं। अब उसमें अगर लाख हो तब भी ठीक और 2 लाख हो तब भी ठीक। ओके। तो प्राइसिंग जो है इसके ऊपर डिपेंड करती है। लाइक सपोज फॉर एग्जांपल अभी कोविड टाइम्स में इलायची के दाम बहुत बढ़ गए थे। तो हम्म। जो भी मतलब जो 3,000 में सेल होती थी, इट रीच्ड टू अ पीक ऑफ 6,000 आल्सो।
So इसलिए price is always fluctuating, Hmm. but how you price it is depending on how much you have used it. No wastage. Make it a point not to waste anything, because Yes. आधे world में खाना ही नहीं मिलता है. Why to waste? Since we are Absolutely. well endowed, we should not waste it. तो Correct. जितना अपने को लगता है उतना ही अपने यूटिलाइज करेंगे और उसकी प्राइसिंग अपने आप ही ऑटोमेटिकली वो कम हो जाएगी. Absolutely. So आपने प्रॉफिट, या प्रॉफिट इज द बेस ऑफ आवर वर्किंग. बट absolutely. प्रॉफिट भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोगों को खराब लगे. सुपर अपने नॉर्मल मिनिमम नहीं में, होना चाहिए. या सुपर नॉर्मल नहीं, अपने मिनिमम में खुश हो. धीरे धीरे वो बढ़ना ही है. वंस यू मेक अ मार्क, वंस यू क्रिएट योर ब्रांड, automatically you can increase your price, but also considering the people who are buying it. Always Absolutely. B2B or B2C consideration should be there. B2B, you are at कि भाई हमको बिजनेस से बिजनेस मिल रहा है, तो वी शुड कंसिडर द प्राइस फैक्टर. B2C डायरेक्ट कंज्यूमर को जा रहा है, उसके पॉकेट को पिंच नहीं होना चाहिए. दैट आल्सो शुड बी अ मैटर. तो ये सब चीजों को आप ध्यान में रखते हुए ही अपने प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग करो, एंड जिस एरिया में रहते हो उस हिसाब से भी रखना पड़ेगा. अच्छा, जी, एक अब क्वेश्चन, हाँ जी. सॉरी राजेश जी, एक क्वेश्चन है मेरा कि B2B में अपने कैसे काम करते हैं. सपोज आज मैं कुछ बना रही हूँ तो वो मुझे बिजनेस टू बिजनेस कैसे काम मिलता है? फॉर एग्जाम्पल यू टोल्ड अबाउट मसालाज ना. हाँ हाँ. आप खुद तो ग्रो करने जाओगे नहीं, खुद तो हम्म. फील्ड में लेबर करोगे नहीं, आपको तो कहीं ना कहीं से सोर्सिंग करनी पड़ेगी ना. करेक्ट. तो वो सोर्सिंग करके आप मैन्युफैक्चरर से करो, या फिर डायरेक्ट एग्रीकल्चर मतलब जो फार्मर है उससे हाँ. करो. फिर आप अपनी पैकेजिंग, आप अपने जो भी मिक्सिंग पैकेजिंग करो, वो आपका हो गया B2B. सिंस एंड अगेन द B2B विल बी, आई एम नॉट सेलिंग इट माई सेल्फ, आई एम गिविंग इट टू द रिटेलर टू सेल इट. तो अच्छा. ये फॉर्मेट हो जाता है. ओके. एंड कंज्यूमर्स हो गया. आज कविता आपने मेरे से कुछ मंगवाया, हाँ, वो तो डायरेक्ट. मैन्युफैक्चरर हूँ, तो वो डायरेक्ट कंज्यूमर को हो गया. दिस इज द डिफरेंस. सो क्या ये बड़े बड़े जो होटल्स हैं या जो रेस्टोरेंट्स हैं, डू दे बाय फ्रॉम होम शेफ्स? ऑफ कोर्स हाँ हाँ देयर आर जरूर. मेनी. एक बहुत ही बड़ी स्वीट ब्रांड है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा बिकॉज ऑफ द क्लाइंट सीक्रेसी के कारण. एथिक्स. तो अब क्या है कि वो कुछ दिन पहले बड़ा बाजार में हमारे एक मेंबर है, उन्होंने कुछ मतलब वो पापड़ी वगैरह स्टार्ट किया. तो क्या हुआ कि उनको पापड़ी का अचानक डिमांड हो गई, क्योंकि लेबर नहीं है, लेबर सब चले गए हैं, गांव चले गए हैं, तो डिमांड एज इट इज है, तो कैसे फुलफिल करे. तो क्या है कि अब वो मेंबर जो है वो पापड़ी बनाते हैं, मेरे को मालूम है, और उनको मालूम था कि वो मेंबर जो है वो हमको जानते हैं, तो दोनों हमको जानते थे. तो क्या दोनों ने हमें कांटेक्ट किया कि भाई वो कैसा बनाते हैं, उनका क्या प्रोडक्ट कैसा है. तो मैंने बोल दिया भाई बहुत अच्छा है. उन्होंने मेरे को भेजा भी था टेस्टिंग के लिए, हमने टेस्टिंग भी की है और उनका बहुत अच्छा है. तो बोला कि हम लोग उनसे काम कर सकते हैं क्या, हमारे को तो इतना 100 किलो इतने 500 किलो चाहिएगा. हम बोला वो आप उनसे बात कर लो, और वो जो अगर आप हेल्प करते हो उनको थोड़ा, तो क्यों नहीं बना सके. तो जो बड़े रेस्टोरेंट्स वाले होते हैं, अब जैसे सोनाली है, ये अभी माइक्रोग्रीन्स का वगैरह करती है. तो माइक्रोग्रीन्स इज वेरी इन थिंग राइट नाउ. हर कोई अपने किचन में जो है वो ग्रो भी कर सकते हैं. तो माइक्रोग्रीन्स अभी हर रेस्टोरेंट यूज भी करता है, लेकिन हर रेस्टोरेंट उसको जो है ग्रो नहीं उगाता करता. नहीं होगा. करेक्ट. तो वो कैसे सोर्स करेंगे. अब माइक्रोग्रीन्स देखिएगा आप, अगर इतना जो है वो आपको मार्केट में भी नहीं मिलते हैं. तो माइक्रोग्रीन्स किससे लेते हैं भाई, वो लोग जो घर में उगाते हैं उनसे ही लेते हैं. ओके. देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच ओनली होम शेफ्स कैन डू, तो वो प्रोक्योरमेंट हो जाता है. होता है. तो छोटी छोटी हमारा तो चीजें प्लेटफॉर्म ही जैसे, इसी चीज का है ना, कि हाँ. हम लोग कनेक्ट करते हैं पीपल को. यस. और छोटी छोटी चीजें जैसे कपकेक्स हैं और ब्राउनीज वगैरह हैं. तो कपकेक्स और ब्राउनीज जो है वो माइक्रो होम शेफ जितने चीप रेट या सस्ते में बना लेगा, उतना रेस्टोरेंट नहीं बना सकेगा. तो ये सब चीजें जो है वो रेस्टोरेंट वगैरह है ना, बहुत होम शेफ से लेते हैं. हाँ जी. ओके. और क्योंकि देखिए अब अगर आप देखते हो तो जनरली रेस्टोरेंट का बिजनेस सैटरडे संडे ही होता है. मैक्सिमम. बाकी 5 डेज उनका होता नहीं है. तो बाकी 5 डेज वो लोग एवरेज कर देते कि भाई हमको जो है कितनी ब्राउनीज हमारी बिकती है. तो हो सकता है 2 या 3 बिकती होगी उनकी. अच्छे रेस्टोरेंट में 5 या 6 बिकती होंगी. तो 5-6 जो है वो अपने रेस्टोरेंट में बनाएगा, तो दूसरी चीज जो है वो क्या होगी कि वो उसको हैम्पर होगी. तो वो लोग क्या करते हैं कि भाई 5 रोज मुझे 5 चाहिए, तो रोज जो है आज सोनल जी बनाती है रोज, तो सोनल जी को रोज भाई सुबह सोनल जी आप 5 मुझे ब्राउनीज दे जाइएगा. ओके. तो बहुत रेस्टोरेंट्स जो होते हैं वो होम शेफ्स वगैरह से जो है वो लेते हैं. ओके. सो मेरा लास्ट क्वेश्चन है सोनल एंड राजेश जी को, आप
कैफे मेंबर्स को कैसे हेल्प कर सकते हो, दोज हु आर विलिंग टू स्टार्ट, और जिनका ऑलरेडी है, कई लोगों का उन्होंने लाइक कुछ ना कुछ वो कर रहे हैं, बट अब उनको ग्रो करना है. तो ऐसा है कि जो कैफे मेंबर हमको बुलाएंगे अपने घर में खाना खिलाने के लिए, उनको फ्री सर्विस मिल सो टेस्टिंग या पसंद आना चाहिए. हाँ हाँ जी। जी. नहीं, हमारे देखिए पास हम लोग काफी ऐसे मेंबर्स हैं जो हमको भेजते हैं ताकि वी टेस्ट. हाँ, बहुत obviously. रेस्टोरेंट्स भेजती हैं हम लोगों को, हम्म. सो वी टेस्ट एंड गिव. दैट्स व्हाई हम लोगों ने काफी, जैसे राजेश साहब बताइए उसके बारे में. आप जो बेकरी आपके एंड घर में ऑल. जो सुबह आप लोग जो सुबह ब्रेड खाते हो, हाँ जितने भी जी. कंपनीज के कलकत्ता में आप लोग ब्रेड खाते हो, वो पहले हम्म. हमारे थ्रू गई हुई है. हमने इनको जब अप्रूवल दिया है कि ये घर में यूज हो सकती है, घर में लोग खा सकते हैं, उसके बाद जो है वो आपको ये घर में आती है. तो ये सोनल एक प्रोफेशनल टेक टेस्टियर है, इन्होंने कहा था, आपने पहले इनका इंट्रोडक्शन में कहा हाँ, था. यस यस. तो अब जैसे बर्गर किंग है, तो इसके बर्गर्स जो है वो पहले हमने टेस्ट किए थे कि कौन से बर्गर्स जो है वो यहाँ पे चलेंगे, कौन से नहीं होंगे, किस ड्रिंक के साथ में ये अच्छे लगेंगे, कोक के साथ में अच्छा लगेगा कि स्प्राइट के साथ अच्छा लगेगा कि कॉफी के साथ अच्छा लगेगा कि चाय के साथ अच्छा लगेगा. तो ये सब क्या है, ये प्रोफेशनलिज्म में आ जाता है. ये लोग क्या करते हैं, जितने भी कंपनीज हम लोग को लगता है कि नहीं भैया वो लोग बर्गर बना लिया, वो लोग बेच रहे हैं, ऐसा नहीं होता है. एक प्रोडक्ट जब मार्केट में आता है उसके पहले 6 महीना 1 बहुत साल का रिसर्च. रिसर्च होता है. रिसर्च होने के बाद जब वो प्रोडक्ट तैयार होता है, उसके बाद वो हम लोगों के पास आता है. तो हम लोग अगर उसको रिजेक्ट कर देते हैं तो 1 साल की मेहनत की खराब हो जाती है. तो अब जैसे फारिनी है या ब्रिटानिया है या कोई भी कंपनीज, जितनी भी बड़ी कंपनीज है, वो क्या करती है, वो घरों में पहले जाती है कि भैया ये जो है, ये हमारा प्रोडक्ट जो है वो सक्सेस होगा कि नहीं होगा. तो उनको घरों में कौन ले जाते हैं, वो हम ले जाते हैं. आप लेकर जाओ. जी. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए कि जो भी प्रोडक्ट है वो घर में जो है वो अप्रूव हो और लोग उसको एंजॉय करें और उनका जो है मार्केट बढ़े. जी सोनल. एब्सोल्युटली. हाँ जी. तो ये बेसिकली वी हैव टू कीप इन माइंड, यही चीजें हैं. और कोई क्वेश्चंस कविता? एक क्वेश्चन रिंकू का था कि ओवरहेड एक्सपेंसेस को कैसे ऐड किया जाए. सो फूड का तो जैसे आपने बताया कि भाई जो कॉस्टिंग आती है उसके हिसाब से कर दिया. ओवरहेड एक्सपेंसेस, आज सपोज आप अपने ही घर के किचन में घर का भी फूड बना रहे हो, और सिंस यू आर अ होम शेफ, आप ऑर्डर्स के भी कर रहे हो. जी, इसके लिए तो मैं ये बात बोलूंगा कि कभी भी घर के साथ में अपना प्रोफेशन वाला चीज नहीं होना चाहिए. एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे, मैं जैन हूँ तो मैं उस होम शेफ से कभी भी खाना नहीं मंगाता हूँ जिसके घर में नॉनवेज बनता है. ठीक है. तो प्रोफेशनल अगर आप होते हो तो कभी भी ये दिमाग में मत रखो कि घर के साथ साथ आज जो है भिंडी की सब्जी बना रही हूँ घर में, तो आज मेन्यू में भिंडी की सब्जी डाल दूंगी या आलू की सब्जी बना दूंगी. ये नहीं होता है, ये कभी नहीं होगा, ये आप सक्सेस नहीं होंगे. आपको प्रोफेशनली जो है वो डिफरेंट मेन्यू रखना होगा, उसके लिए डिफरेंट घर में ही एक अलग थोड़ा सा छोटा सेटअप करना होगा. और घर की चीज जो होती है वो अलग हो जाती है. घर की चीज अलग रहेगी, घर का खाना अलग रहेगा, बाहर का जो हम लोग प्रोफेशनली करते हैं वो खाना अलग रहेगा. ओवरहेड जनरली कोई भी बिजनेस में ओवरहेड्स होते हैं. हम लोग 25% ओवरहेड जानते हैं, हर बिजनेस में होता है. स्टाफ होते हैं, सैलरी होता है, लाइट है, फ्रिज है, पंखा है, ये है. 25% जनरली हम लोग पकड़ लेते हैं. फूड बिजनेस में क्या है, फूड बिजनेस क्या है कि ये हाई प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस है. आप 1 रुपए का चीज आप 10 रुपए में बेचते हो. तो ओवरहेड अगर हम लोग इसमें नहीं भी काउंट करें तो चलता है, क्योंकि आपकी प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बहुत ज्यादा है. यहाँ 10% 15% प्रॉफिट नहीं होता, यहाँ पे 50% 60% 100% प्रॉफिट होता है. करेक्ट. आलू और आलू का चिप्स. जी. आप वेरी कोई ट्रू. भी चीज को, आप भुट्टे को देखिए, आप कॉर्न को देखिए, आप अगर किसी भी इसमें जाते हो, अगर मूवी देखने जाते हो और अगर आप पॉपकॉर्न. कॉर्न चाट लेते हो, तो आप वो 10 रुपए के भुट्टे की जो कॉर्न चाट खाते हो वो 80 रुपए में खाते हाँ, करेक्ट. हो. इसको वैल्यू एडिशन बोलते हैं. वैल्यू एडिशन बहुत जरूरी है फूड बिजनेस. Yeah. And your food speaks for you. Yes, Your absolutely. food will speak for you. Yeah. तो जनरली होम शेफ्स अगर हैं तो आप ओवरहेड का इतना चिंता ना करें, क्योंकि ओवरहेड बहुत ही मार्जिनल होता है और प्रॉफिट इतनी ज्यादा है इसमें कि इसके कारण जो है ना वो आपका जो है ओवरहेड उसके अंदर में आ जाता है और कोई फर्क नहीं पड़ता. दूसरी बात, आपने जो कहा कि अभी बहुत वायरल हो गई ये चीज, एक्चुअली कोविड टाइम में रेस्टोरेंट बिजनेस जीरो होने के कारण होम शेफ्स का काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है. अब रेस्टोरेंट का अगर जीरो हो जाता है तो फसाई जो है या गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी कम हो जाता है. तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए.
तो ये जो चीज अभी नहीं आई है ना, कि अब गवर्नमेंट क्या की है कि भाई कहाँ लोग तो खाना खा रहे हैं बाहर से मंगा हाँ, के, तो कहाँ से तो खा रहे कहाँ से खा रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट ने जब देखा कि भाई नहीं, ये तो घर घर से खाना जा रहा है भाई, अरे भैया घर घर से जा रहा है तो हमारा रुपया क्या हुआ, तो हमारा रुपया क्या हुआ। तो ये चीज जब वायरल हुई, फसाई ने क्या किया कि भैया आप होम शेफ हो तो भैया 100 रुपया जो है वो आप हमारा पैसा जमा रजिस्ट्रेशन दो। करो। 100 रुपया, ये आप ये मत समझो कि ये 100 रुपये, ये एक जाल है, ये मकड़ी का जाल है। ये आप हाँ, जैसे ही रजिस्ट्रेशन correct. So I think some network issue again. Again, some network issue. Yeah. So Sonal, we are done with the questions now. तो वाला Okay. पूछना है, तो विकल्प क्या हुआ? हाँ, राजेश जी वापस थोड़ा सा Network. नेटवर्क इशू हो रहा है आपका। Again, network issue हो रहा है। हाँ जी, राजेश, आपका नेटवर्क हाँ इश्यू जी, हो रहा है वापस लगता है। अभी ठीक है, हाँ अभी जी, ठीक है, अभी ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर ठीक है। एंड फॉर दिस आई विल से नाउ क्विज कर लो एक राजेश भैया। अगेन नेटवर्क इशू हो रहा है कविता। यस, राजेश भैया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्विज करो। हाँ मैं यही 5 बोल रहा था। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्विज में ऐसा है कि जब भी क्वेश्चंस आएंगे उसका हम लोग हाफ अ मिनट के लिए हम लोग पॉज करेंगे, ताकि लोग जो है वो आंसर दे पाए। आपके इधर नीचे आंसर्स आ जाए सब, और आंसर्स आ जाए। कविता जी आप ये देखिए कि सबसे पहले किसका आंसर आया है, और सबसे और क्वेश्चन का ठीक बाद उसका आंसर भी हम दे देंगे, ताकि क्या है कि कविता जी आपको जो है वो आसानी हो ये जानने में कि किसका करेक्ट आंसर है और किसने पहले आंसर दिया। ठीक है ना? तो सोनल अपने कितने विनर्स हैं? अपने 3 विनर्स रखेंगे। 3 विनर्स रखेंगे, ठीक है जी। तो क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन मैं करूंगा, उसके बाद एक क्वेश्चन सोनल करेगी, फिर एक क्वेश्चन मैं करूंगा। और मैं थोड़ा सा क्या है कि इजी टास्क मास्टर हूँ और सोनल इज वेरी टफ, तो उसके क्वेश्चंस बहुत ही टफ होंगे, तो आप जो है वो गूगल वगैरह ऑन करके रख दीजिए। हाँ जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन कौन, सोनल आप दोगे मैं दूंगा? नहीं, आप दीजिए। ओके, अच्छा Easy. तो इजी दो क्या? अच्छा अच्छा, इजी दो, इजी दो, इजी दो, तो ठीक है भैया। अभी वो जसानी बेन है कि निकल गए है क्या? अच्छा अच्छा, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सबसे कि भाई सुकड़ी और पात्रा ये कौन से स्टेट की जो है वो डेलिकेसीज है? सुकड़ी एंड पात्रा आर डेलिकेसीज फ्रॉम विच स्टेट? काफी सारे आंसर्स आ गए हैं। काफी सारे आ गए आंसर्स। अपने ग्रुप में गुजराती बहुत है राजेश बहुत जी, है, बहुत है। 50% आर आई थिंक फ्रॉम, गुजराती। हाँ। तो सेकंड क्वेश्चन करें फिर, इसका तो आंसर आ गया ऑलमोस्ट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मैं सेकंड भी फिर एक सेकंड में नोट कर लूं ना किसने हाँ किसने जी, किया, हाँ जी, बहुत हाँ ऊपर जी। चला जाएगा नहीं तो। हाँ हाँ हाँ, सो आंसर क्या है? गुजरात। अच्छा, ऑफ कोर्स। गुजरात, किसी गुजरात। ने राजस्थान भी किसी ने लिखा था, मैंने राजस्थान भी देखा। लिखा, किसी ने उड़ीसा भी लिखा है। हाँ। अरे उड़ीसा में सुकड़ी कहाँ से आएगी भाई, कहाँ कौन से आ था? गई एंड ठीक है। पात्रा जो है वो राजस्थान की डिश नहीं है, वो गुजरात की डिश है। हाँ। सुकड़ी भी शायद गुजरात की, सुकड़ी गुजरात राजस्थान। की। गुजरात की, गुजरात की। गुजरात की है। वो पिन्नी शायद सुकड़ी की जैसी सिडनी होती है वो। पंजाब की है। हाँ, लेकिन उसके पिन्नी और सुकड़ी के बीच में राजस्थान में कुछ होता है सोनल, वो क्या चीज है? मोहनथाल भी होता है मोहनथाल होता है, काफी। मोहनथाल। हाँ, ये अच्छा, सुखड़ी मोहनथाल। आटा का बनता है। सुखड़ी और मोहनथाल बेसन का बनता है। जी जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए। यस। हाँ हाँ सोनल। हाँ जी। तो सिंस ये एकदम सिंपल सा पूछें तो मैं भी फर्स्ट इंप्रेशन सिंपल ही डाल दूं मेरा, वरना लोग घबरा जाएंगे मुझसे, है ना? Which rice dish paya is originated from?
ये सिंपल है। हाँ जी। खीर, स्पेन, खीर। क्वेश्चन मेरे को हिसाब से समझ में नहीं आया बहुत लोगों को। आ गया आ गया आ नहीं, गया। ऐसा है कि आंसर आ रहा बहुत है। लोगों ने जो है वो पाया क्या चीज है, ये इसका आंसर ओ, दिया है। हाँ, पायसम समझ लिए वो लोग, पाया, PAELLA। हाँ, सो तो सोनल बहुत एक लोगों बार ने क्वेश्चन फिर से रिपीट करो ना। Which rice dish, paella, originates from which country? Which country? आंसर्स तो बहुतों ने दे दिए हैं, और बहुतों ने अभी ये जो उड़ीसा, कविता बुबना जी, हर समय उड़ीसा क्यों चले जाते हो आप? उड़ीसा इज नॉट अ कंट्री, इट्स अ स्टेट। स्पेनिश खिचड़ी है क्या ये? नहीं, खिचड़ी नहीं है ये। यू कैन से इट, इट्स अ बिरयानी, स्पेन की है ये। Okay. पाया मीन्स पुट इन अ पॉट। Okay, so Paella means put in a pot. So okay. whatever, like generally it is a non-veg dish, but आजकल vegan and vegetarian culture हाँ, है। so तो जिसने जिसने स्पेन लिखा है वो सही है ना? हाँ, that is right, that is right. Italy wrong है। श्वेता, सुरुचि एंड जो भाविका। पहले लिखे हैं उन्हीं को पहले लीजिएगा आप। हाँ हाँ हाँ, यस, हाँ। मैं वही कर रही हूँ। जी जी। सेकंड, राजेश। हाँ जी। एक वर्ड है, जो है बर्ड का नाम है और वो फ्रूट भी है। द सेम वर्ड अप्लाइज फॉर अ बर्ड एंड इतना अ इजी फ्रूट दोगे क्या? हाँ। इतना इजी दोगे क्या? तब तो 10 अच्छा, गिफ्ट्स निकाल के रखिए। तो ये जो, अच्छा तो अब मैं इसका क्वेश्चन, अच्छा तो क्वेश्चन अब पूछता हूँ। हाँ ये जो है हाँ। किस कंट्री से बिलोंग करता है? ओके, Everyone has given a right answer. आ गया आंसर, आ गया। कैफेटेरियंस लगता है कि बहुत ही स्मार्ट है और बहुत ही नॉलेजेबल है। बहुत स्मार्ट है। जी जी। हाँ सोनल, आरजी कौन है भाई? सोनल, सोनल नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हाँ जी, अब मेरा डिफिकल्ट आएगा। ओके। Humans can classify how many different types of taste? Human can classify how many different types of taste? Can you name them, please? I would like the names also. दो ही आंसर्स आए हैं अभी तक। नहीं, हाँ आने दीजिए। अब सब लिख रहे हैं ना? हाँ लिख रहा हूँ। पहले इजी था, 5 6 7 8 लिख रहे थे। That's why I wanted the names. अभी तक सबका राइट मतलब प्रॉपर पूरा नहीं आया। नहीं आया, पूरा नहीं आया। किसी ने 3 लिखा है, किसी ने 4 लिखा है। स्वीट, मिठो, सॉल्टी। नो, अभी तक किसी का भी राइट नहीं आया। सब कोई कंफ्यूज हो रहे हैं। आप बता दो। See, I will tell you. Sweet, sour, bitter, ये ठीक था। Okay. There are 5 major tastes. First is sweet. Whatever touches our tongue, अगर वो अपने को जो टेस्ट देता है, that is the taste actually, which is counted. अपने स्पाइसी को टेस्ट में नहीं काउंट करेंगे। स्पाइसी इज द फीलिंग, इट इज नॉट अ टेस्ट। कंसिडर इट। स्वीट इज अ टेस्ट, sour is a taste, bitter is a taste, salty is a taste, and the fifth very important one is umami. This no one has इसके बारे answered. में कुछ बताइए, इसके बारे में बताइए। umami ऐसी टेस्ट है जो एक्चुअल में इट गिव्स यू अ वुडी फीलिंग, वुडी फीलिंग। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप मशरूम खाओगे तो आपको कैसा टेस्ट आता है? यू कैन नॉट डिफाइन द टेस्ट, है ना? Yes. So umami taste is
that which cannot be defined easily but gives you a woody naturey feel to you. जैसे मशरूम को अगर आप टेस्ट करते हो तो आपको नेचर से रिलेटेड लगेगा आपको. So that is called umami. Like Japanese food, it's based totally on umami flavors. ये तो मैंने कभी नाम ही नहीं सुना था उमामी टेस्ट का. तो जी जी, अभी नया That's why I रेस्टोरेंट am the खुला है. tricker. हाँ. नया रेस्टोरेंट खुला है बर्मा. बर्मा. टोटली वेजिटेरियन है, वहाँ जाइए और उसका टेस्ट उठाइए और उमामी उमामी कीजिए. वाओ. जी. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये होगा कि which fast food franchise in the world has the highest restaurants? सबसे ज्यादा रेस्टोरेंट किस फास्ट फूड फ्रेंचाइज वालों की है? मैंने कहा ना सबको मैकडॉनल्ड्स ही लिखेंगे. नहीं, एक आंसर भी लिखा है. KFC भी लिखा KFC है. भी लिखा है. एक आंसर राइट आ गया, मैंने देखा. आ गया क्या? मुझे दिखा नहीं. जी जी आ गया. So guys, you all are liking it or not? Of course. Look at the answers. Yeah. Loving it. अच्छा, इसके अंदर एक विनोद कंडोई जी भी है, वो क्या हाँ आपके जी. मेंबर है? किसी और का नाम है मुझे लग रहा है. हाँ. अच्छा अच्छा, नहीं तो मैं भी अप्लाई कर दूंगा मेंबरशिप. हाँ. हाँ, तो आंसर जो है वो इसका ये है कि आंसर्स मैंने देखा 2-3 जन के आ गए हैं. आ गया है. वो हाँ. सबवे है, और सबवे का ऑल ओवर वर्ल्ड जो है वो 41,600 आउटलेट्स है. दैट इज 41,600 आउटलेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इन 111 कंट्रीज. 111 कंट्रियों में सबवे जो है वो है. लेकिन हम लोग इंडिया में नहीं खाते क्योंकि इतनी पचपच करते हैं वो लोग. गुजराती में आपने कही ना पचपच. अरे भैया, हमने उसको ऑर्डर दिया सैंडविच का, तो कौन सी ब्रेड चाहिए भैया? 4 रकम की ब्रेड. फिर कौन सा सॉस चाहिए भैया? 15 रकम के सॉस है. अब ऑनियन भी उनके 4 रकम की होती है, बताइए. और सैंडविच बनते बनते तो भैया हम लोग को तो भूख है. That is why इनका ये USP है कि भाई जितना आदमी को है ना वो मतलब क्रेविंग बढ़ाए उतना इनका सेलिंग पॉइंट है. That's why they do this. लेकिन They फिर keep भूख 5 मर जाती है ना variations. भाई. नहीं, भूख मरती नहीं है, उल्टा अरे मर क्रेविंग जाती बढ़ है. जाती है. ओके. जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो. एक मेरा क्वेश्चन आएगा, टफ है अगेन बिकॉज आई एम ऑन द टफर साइड. Which country saw the cultivation of the first potato in 200 AD? Which country saw the cultivation of the normal potato, the normal ordinary potato, in 200 AD? हमको लगता है कि किसी किसी को आपने पहले से क्वेश्चन दे दिए, सोनल. इतना जल्दी आंसर आ गया. सही में मैंने लग the रहा है मुझे. moment she was right saying Yeah. the question उतना में तो answers उसमें भी आ आने गया. लग गया. रेखा is perfectly right. So पेरू. नहीं, कंट्री आपने पूछा था तो बहुत लोगों ने कंट्री बोली है. कंट्री बोलना चाहिए तो बोल ही दिया है. जी जी जी, मतलब क्वेश्चंस खत्म नहीं होता उससे पहले आंसर्स आ जाते हैं. पहले ही आंसर्स आ गए. So what Very is the smart. correct answer? It is South America only. So वो भी पेरू बोलिविया जिसने लिखा है वो भी करेक्ट है. वो भी करेक्ट है बिकॉज अर्जेंटीना है उसमें. दैट ओनली. So only Peru is the answer. नहीं. साउथ अमेरिका का कोई भी रीजन. साउथ अमेरिका एंड बोलिविया जिसने लिखा है सबका राइट है. मेरा कविता. भाविका तुम कहाँ हो? भाविका. अच्छा, ओके. एंड अर्जेंटीना. हाँ, वो साउथ अमेरिका में आता है. वो साउथ अमेरिका में आता है बट एग्जैक्टली अर्जेंटीना में नहीं लोकेट हुआ था ये. अगर अर्जेंटीना होगा तो करेक्ट नहीं. लेकिन इट इज राइट. पर इट इज राइट. जनरली साउथ अमेरिका के जो सदर्न पार्ट्स है ना, जिसने दिया उसको नंबर दे दूं तो वही पूछ रहे हैं. नंबर तो दे दो, आराम से दे दो. ओके. सदर्न पार्ट में सारे आंसर्स जो देगा वही विनर है. हाँ. एक्चुअली कॉमन आ नहीं रहे ना लोग. हाँ, नए आ रहे हैं. नो प्रॉब्लम. अपने 3 कैटेगरी रखे हुए हैं. हाँ. और हम TMTC वाले बहुत ही जेनरस आर्टिस्ट हैं. हाँ, वो तो दिख रहा है. हम लोग कभी भी ध्यान नहीं रखते हैं कि कितने आए, हम सबको दे देते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं अपने. यस. हाँ जी. अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द मोस्ट कंज्यूम्ड
मैन्युफैक्चर्ड ड्रिंक इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा निर्मात मतलब मैन्युफैक्चर्ड Consumed and manufactured. ड्रिंक इन द वर्ल्ड। इसमें किसी का सही नहीं आएगा, आई एम गारंटिंग यू। ये तो बहुत इजी है। आया, ना ना अभी कोई तक तो तो नहीं आया है। नहीं, कोई नहीं आया। श्वेता जी Wine. लिखती है वाइन, Wine. वेरी गुड। वॉटवे क्या है? वाटर। वाटर ने, वो वाटर है, प्रिंट मिस्टेक। वाटर तो जो है वो महादेव बनाते हैं, वो वही मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, हम लोग तो कर नहीं सकते भाई। बियर। श्वेता इज ट्राइंग ऑल, वाइन, बियर। लेकिन शी इज ट्राइंग व्हाट? वाइन बियर। अरे भाई आज फ्राइडे है ना। हाँ। कॉफी, थम्स अप, चाय, सब कुछ तो आ गया। अब आंसर क्या है वो बताओ। जी, टी इज द आंसर। टी इज टी द ना? आंसर। हाँ या हाँ, इट इज tea, द tea. मोस्ट कंज्यूम्ड मोस्ट मैन्युफैक्चर्ड। कंज्यूम, चाय जो है वो बनती है, हाँ। पत्तों से पैकेज बनती नहीं है। मिलती है। हाँ, और 273 billion liters of tea is consumed every year. एवरी डे, 273 सॉरी, billion liters चाय हम लोग पीते हैं हर साल। उर्मी, पूजा एंड रेखा। जी सोनल। हाँ जी। अब एक बहुत ही सुंदर सा है, बहुत ही मीठा सा जवाब होगा इसका। Which sticky edible was used traditionally as an antiseptic for cuts, bruises and burns? I am repeating. Which sticky edible was used traditionally as an antiseptic for cuts and bruises? अब आप आंसर बता सकते हैं। सबका सही है, हनी। हाँ। देखा, मैं इतनी भी टफ नहीं हूँ राजेश। हाँ एकदम भी। एक्चुअली हमारे ग्रुप की ब्यूटी यही है कविता, कि अब वी आर ऑल सो इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। हम लोग एक दूसरे के साथ सारे टाइम मस्ती करते हैं, टीज करते हैं, और कोई भी किसी भी बात का बुरा नहीं मानता है। एकदम बिल्कुल। यही इसका एसेंस है आंसर आ गया हमारे क्या? ग्रुप का। हाँ जी, आ गया, हनी। अच्छा, वेरी गुड। कोई है क्या हनी यहाँ पे? हमारी एक मेंबर है कानपुर में, हनी लालवानी, बहुत ही शी इज पॉपुलर वेरी है। पॉपुलर, या उनके और उनके YouTube में 2.5 लाख जो है वो सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स है। हैं। वाओ। हाँ जी, बहुत ही पॉपुलर है हनी लालवानी। और इतनी जयपुर से है, शादी के बाद वो कानपुर आ गए। ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं ये अब बोलता लास्ट हूँ क्वेश्चन है वो कि आपका। नहीं, मेरे 2 क्वेश्चन अच्छा, है। दो है क्या? तो ये जो क्वेश्चन है, ये मैं 2 नाम लूंगा, वो किसी और लैंग्वेज में उसको बोलते हैं। उसको कलकत्ता में क्या बोलते हैं या अपने बंगाल में क्या बोलते हैं, ओके। ठीक है ना? तो एक तो हुआ है डूंगरी। डूंगरी को कलकत्ता में क्या बोलते हैं, और बटाटे को कलकत्ता में क्या बोलते बटाटा एंड डूंगरी। हैं? जी, दोनों का नाम चाहिए। अब ये पापड़ी चाट किसने लिखा भाई? ओ बटाटा पूरी। दोनों नाम चाहिए मुझे। डूंगरी को क्या बोलते हैं, आज और आज श्वेता एकदम मूड में है। पहले वाइन, बियर और अब पापड़ी चाट। ये स्नैक्स तो चाहिए ना भाई। स्नैक्स तो चाहिए। बियर के साथ में स्नैक्स तो चाहिए। अब आप आंसर बता सकते हो क्योंकि बहुत सारे आ गए हैं। आंसर एकदम राइट आए हैं, आलू प्याज। और प्याज। सो पहला 3 प्याज। पिंकी, पूर्वी, सुरुचि। जी सोनल, आपका क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, what are these names of heirloom, plum, pear, cherry, globe? What are these names of heirloom, plum, pear, cherry, globe? खाने की चीज, खाने खाने की का चीज है क्वेश्चन भैया। है। क्लोथ। दीज आर नॉट क्लोथ्स। ये आंसर आधे जन नहीं दे पाएंगे। वेरी नहीं रेयर नहीं, दिस आंसर विल एक पर्टिकुलर जो है वो
एक पर्टिकुलर जो है वो आइटम है जिससे डिश बनती है, एक इंग्रेडिएंट है, नहीं, इंग्रेडिएंट नहीं, ये बहुत एक यूज होता है। वेराइटी है ऑफ फूड. ये हेirloom, एक वैरायटी ऑफ plum, pear, सिंगल cherry, globe. These are the variety of that product. पिज्जा में यूज होता है भैया, पिज्जा में यूज होता है आजकल. इतने हिंट्स मत दीजिए, इजीली पता चल जाएगा फिर. नहीं नहीं, अभी इन लोगों का नहीं 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 चीज. नहीं, अरे भाई, किसी ने ये आंसर नहीं दिया. ऑलिव्स है क्या? नो नो, नो टोमेटो. पूर्वी, टोमेटो किसी ने आंसर दिया है. पूर्वी, सन ड्राइड पूर्वी. टोमेटोज होते हैं. पूर्वी. Tomato is the answer, not sun-dried tomatoes. Hmm. Tomatoes is the answer. These are the varieties of tomatoes which are grown. Let me tell you a fact. There are around 40,000 variations in tomatoes cultivation. 40,000. Yeah. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो ये है. Mhm. कविता जी नाम लिख लिया 10 हो गए क्या? क्वेश्चन नहीं हुआ अभी तक. हाँ, मैंने लिखा है नाम. हाँ जी. टमेटो में मैंने एक ही लिखा है फर्स्ट, एक ही जन लिखा ने था दिया है, बिकॉज एक ही जन ने दिया. हाँ जी हाँ जी. What is the most expensive spice in the world by weight? वजन के हिसाब से सबसे महंगी स्पाइस कौन सी? स्पेलिंग गलत लिखने से जो है वो आंसर भी नहीं गलत माना मिलेगा. जाएगा, क्योंकि वो सीजर हो गया है वो. हाँ. अच्छा, इसकी प्राइस भी बता दीजिए करंट. नहीं, इलायची बहुत सस्ती है जी रिंकू जी. इलायची नहीं. इसकी प्राइस भी बता दीजिए, करंट प्राइस क्या है? $1 gram 150 rupees. Depends on the region also. हाँ. So they are right in the pricing. हाँ, तो आंसर सैफरन ही था, बाकी प्राइस तो ठीक है. जिसका Price 120 था, pricing. जिसका 120 पर ग्राम है, वो मुझे जो है वो 200 ग्राम भेज दे अभी, क्योंकि बहुत सस्ता है. I would prefer the $7 one. भाई So राजेश जी का फिर से नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया. नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया. कविता, कितने क्वेश्चंस हो गए? क्वेश्चंस तो काफी सारे हो गए हैं. जी. आई थिंक Are we coming to a total- common ground of winners? हाँ हाँ, वो तो और- मैं भी टोटल करूंगी तो आ जाएगा. अच्छा. कविता, सोनल जी एंड कविता जी, मैं क्या है कि अब जो है वो थोड़ा सा आप लोग से एक्सक्यूज नहीं, लूंगा. we are also signing off Just now the हाँ, because so हाँ. just give me a minute. I will tell you who has the Yeah. maximum points. सोनल जी एंड राजेश जी, थैंक यू सो मच. बहुत बहुत वाह. अच्छा था. लास्ट में क्विज तो बहुत मजा आ गया. आप कविता, थोड़ा देखना, मेरा नाम था बहुत सारी जगह. हाँ, बहुत सारी जगह मैंने भी देखा था. भाविका. आप नाम बताओ किसने ये कमेंट किया अभी? भाविका. भाविका. भाविका राजेश गुजराती भैया, शी इज रियली वेरी 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 वाइब्रेंट. मुझे इतना अच्छा लगता है इसको सुनना. थैंक यू सो मच. आज आपके बहुत सारे मेंबर्स को मैं पर्सनली भी जानता हूँ. जानते हैं. वो लोग, हाँ, वो आए नहीं है शायद, मैं देखा नहीं सक. अच्छा, भाविका कोठारी बेन, તમે ગુજરાતી છો. વેરી ગુડ. યસ, અમે ગુજરાતી છીએ. ક્યાં રહ્યો છો? કલકત્તા કે બારે? બેંગ્લોર. વેરી ગુડ. હમણાં વેધર કેવી છે બેંગ્લોર? ऑसम, सुपर्ब. कलकत्ता में भी अभी बहुत अच्छा है. अच्छा है क्या? कविता, ये गुजराती लोग जहाँ भी मिलते हैं गुजराती शुरू कर देते हैं. हाँ, हमने भी अपनी मारवाड़ी शुरू कर देते हैं. एक्चुअली गुजराती क्या है ना कि लैंग्वेज बहुत स्वीट है, आप लोग को लगेगा नहीं का कुछ भी गलत है. आप एंड यू विल अंडरस्टैंड आल्सो इतना इजीली. जो बात करेंगे समझ में भी आएगा. और आप लोग चालू हो जाओगे कोनी अठिया, तो आप लोग को कितनी एम्बैरेसिंग फील होगा. इसीलिए क्या है गुजराती. So I have the winners. हाँ. There mostly सबका सेम पॉइंट्स है. सो रेखा, भाविका एंड श्वेता. वाह. भाविका, ये चीटिंग नहीं किया है मैंने. रेखा, भाविका एंड श्वेता.
So Shweta, Shweta, oh, with okay. Shweta, उसमें सिर्फ श्वेता लिखा हुआ है. अच्छा. Shweta, can you unmute and or you can just type your name, Shweta full name. Shweta Goenka. Goenka, okay. Okay, okay. तो मुझे इसमें मजा ये आया कि आज मुझे भी कुछ मिला नहीं था, हर बार गेम खिलाते हैं मुझे कुछ नहीं मिलता है। इसमें जो है वो एक भाविका जी बेंगलोर की है, बाकी जो दो है वो कलकत्ता की है. हाँ हाँ, yes. हाँ हाँ ठीक है. चलो ठीक है, आप कविता, we will connect to you. राजेश बोलिए. मैं ये बोल रहा था कि किसी को भी अब जो भी प्रोफेशनली का कोई भी एडवाइस हो तो आप सोनल जी का नंबर कविता जी के पास है, आप लोगों Yes. के पास भी होगा. Sonal is in the group only, so everybody has Sonal's number. मैं सोनल जी का नंबर एक बार डाल दूंगी सोनल के नाम से. हाँ जी. And बस और Sonal, हमारे आप आगे cooking आगे का भी जा- लिंक. शेयर करना, ग्रुप का लिंक शेयर And- करना जो फेसबुक ग्रुप है and- आपका. एंड सुनिए और एक और चीज, मतलब राजेश शाह एंड सोनल वर्क टुगेदर, Yeah. सो इसीलिए हम दोनों में से किसी का भी नंबर किसी से होगा भी. तो भी चलेगा, नो हाँ. प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि Please. जैसे दूसरी भी हो बात हम ये लोग कि बहुत जल्दी मैंने कविता जी से बात भी की थी कि बहुत जैसे आप लोग तो कैफे जो है वो वाइड वेराइटीज ऑफ इसमें एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो मैं हम लोग ये चाह रहे थे कि फूड के साथ साथ हम लोग कुछ जो है वो एग्जीबिशन भी कलकत्ता में एग्जीबिशन करें. करेंगे. वी विल कविता जी क्यूरेट समथिंग. और बाकी सब मेंबर्स अगर एग्री करते हैं तो अगर अपने खुद अगर कोई अगर एग्जीबिशन करेंगे तो क्या होगा, अगर आप कहीं भी स्टॉल लेने जाओगे तो आपको 25,000 30,000 50,000 रहेगा. अगर अपने खुद ही करेंगे तो अपने मेंबर्स के लिए वो बहुत ही बहुत फायदेमंद रहेगा. बहुत ही नॉमिनल इसमें हो जाएगा. Absolutely. इट विल बी कॉस्ट इफेक्टिव. वेरी कॉस्ट इफेक्टिव. वेरी गुड. और आप लोग बहुत ही मतलब एनर्जेटिक हो कैफेटेरियंस. कांग्रेचुलेशन टू द विनर्स. और Thank So you. the cafeterians hope they like the maniacs. Absolutely. Yes. और अगर ज्यादा बोल दिया हो तो मिच्छा में टुकड़म. मैं नहीं, जो है आपके वो 2-3 मेंबर्स तो ऑलरेडी हमसे कनेक्टेड, हमसे सलाह ले रहे हैं. हाँ. They are taking our मैं अब consultancy. सोनल मैं अब थोड़ा सा क्या है हाँ जी, कि हाँ जी. लीव लेंगे. ओके भैया. ठीक है ना. ओके भैया. चलिए थैंक्स कविता अ जी, लॉट बाय भैया. बाय. Thank बाय you. एवरीबॉडी. Thank you so बाय much. बाय 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 बाय. So Kavita, hope everyone is satisfied with the answers and all. And if they really want to connect to us, they can easily. Absolutely. You just thanks a lot.